a couple of projects on IoT as well. And currently, even in Creative Chaos, we are working on some of the IoT based projects as well. And I will share some experience with you and insights how IoT projects works and how we can break down it into like different segments so that you guys can understand better how IoT works. So there are other things as well that I got an opportunity to work with lately, and it's I've worked on blockchain, a couple of projects, and also worked on and read about some artificial intelligence based project. Although like it's not entirely artificial intelligence, is more related to machine learning based projects. Working with SageMaker and Google Auto ML, they provide like machine learning as a service. We just need to provide some data feeds and some training data sets in order to better utilize those services. So yeah, so this is what my technology stack is, and these are the things, and these are the type of projects that I have been working for last 14 years. So today my topic is how IoT is shaping the future. But since I have seen, I saw like a lot of registrations from different universities, a lot of like students uh, also part of this session. So I thought it's better if we start with some basics first, and then I will take you towards some of the advanced concepts, and then we deep dive into this topic, how like basically IoT is evolving the technology landscape. So, what we will be covering today, these are some of the topics that I would like to cover in today's session. Introduction to IoT, its context and background, evolution and growth of IoT. I will talk about background, how we got there, why IoT is exponentially increasing in terms of devices, in terms of usage. More and more companies are adopting it. Then we will talk about some of the building blocks of IoT. What are sensors, devices? What is the role of sensors, devices, and then how we can establish connectivity of sensors and devices with the IoT hubs. And there are different available options when it comes to IoT hubs. We will talk about connectivity, data transfer protocols, MQTT, HTTP, and there are several other protocols. We will talk about them. Then we will also talk about how we can process such data, because it's a continuous stream of data. Continuously machines will emit and transmit data to the IoT hubs and servers. So data processing is very different as compared to any other like conventional project. So we will also talk about data processing. Then I will talk about data visualization and user interface, since it's very difficult for anyone to understand that data without the help of analytical tools that we have, because it's a stream of data, a lot of unstructured, structured data. So you need some decent analytical tools in order to translate that data into something more meaningful, so that you guys can understand and benefit your projects. Then we will also talk about the technology stack, like Raspberry Pi, Arduino Uno, and some of the protocols like MQTT, in order to understand what technologies we need to learn in case if you want to work on like IoT based projects. And then we will talk about like some of the applications where we can apply IoT, and like how industry is applying IoT to solve different types of complex problems. In the last, like I will conclude everything that whatever we will discuss, and also I will take your questions in case if you guys have any questions related to any of these topics or anything in general related to IoT. So I will start with introduction to IoT first. So the basic question is obviously what is IoT? So IoT, there are like different peoples have like different interpretations. Obviously, most of the interpretations are aligned. एक उनमें कुछ there are some common factors. So when it comes to Internet of Things, is a system of devices, right? Connected to the internet. So this is the simplest definition of Internet of Things. I will explain you in very simple words as well, since there are a lot of students as well, so they can understand it better. Previously हमारे पास सिर्फ
there are simple set of devices like laptops हैं, कोई desktops हैं, right, या mobiles हैं at max, और वो internet से connected थे. There are mobile apps, there are web apps, right, there are desktop applications जो server के साथ connected होते हैं, and these are also devices, but these are very standard type of devices जो कि हमारे पास पहले 20 years back, 30 years back, 40 years back होती थी. Even फोन, मोबाइल फोन इज समथिंग लाइक 20 years पहले से ही इमर्ज होना ज़्यादा स्टार्ट हुए और फिर बहुत कॉमन हो गए. उससे पहले डेस्कटॉप मशीन्स थी, तो वो डिवाइसेस थी जो कि डेटा सर्वर पे जो है वो सेंड करते थे. उसके बाद देर आर एन एरा, देर इज एन एरा ऑफ लाइक स्मार्ट डिवाइसेस. अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट एयर कंडीशनर्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट TVs, right? And these are different devices. हमारे पास handbands हैं, इसके अलावा iPods and tablets हैं. There are multitude of like different devices available now, and all of those devices are connected with the internet. So इन सारी devices का जो ecosystem है, which is continuously exchanging data with each other and with the servers, there is plethora of like new possibilities that we can work with in different kinds of application that we can introduce in the market. So the definition of IoT is it's just a system of devices connected to the internet with the ability to collect and exchange data from users or environment with no human intervention. So generally there is no human intervention, like we can install IoT chips in any electronic device that can become a smart device, and then we can program it and can apply different logics, so and we can make it smart. That this is why like there are a lot of devices, but this is the basic definition of what IoT is. Device is a thing here because there are multitude of different devices. तो obviously अब हर device का एक specific नाम है. कुछ को हम laptops कह रहे हैं, desktops कह रहे हैं, फिर हम mobile phones कह रहे हैं, but फिर handbands आ गए, smart TVs आ गए. तो there is a generic word for it as well. These devices are like, someone referred to these devices as thing which emits data to the backend. So in IoT, which is Internet of Things, things could be any device connected to the internet. So why IoT is important and why like everyone is interested in IoT? We are lazy. We like to automate things. So this is why like there are remote controls for everything, so that sitting on one sofa maybe we can control everything. Even in our homes we can with the help of remote controls we can control TVs, we can control air conditions, we can control a lot of different devices generally we have in our houses. But अब जो है with the help of with the emergence of smart houses, there is a concept of everything you can control with the help of like remote control. तो आप लोगों ने मे बी जैसे आयरन मैन मूवी में मे बी देखा हो कि किस तरह से जो है वो जार्विस के थ्रू सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं. तो दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, राइट. वो आपके घर के कर्टन्स हों या गेट्स हों, और वो जब आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू कनेक्ट करके एक आप IoT हब बना लेते हैं और फिर आप एक प्रोग्राम करते हैं सॉफ्टवेयर को, जो कि इस केस में जार्विस है, जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस अपनी जो है ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो राउट कर रहे होते हैं और आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो उस तरह से बिहेव कर रही होती हैं. तो स्मार्ट हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है जो कि इवॉल्व हो रहा है वो इसी तरफ जा रहा है कि जहाँ पे आपकी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि आपकी इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं और देयर इज़ अ हब थ्रू विच यू कैन इशू डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और आप बैठे बैठे आप सारे काम अपने जो है वो कर सकते हैं. इवन अब रिमोट कंट्रोल भी एक थोड़ी सी पुरानी चीज़ हो गई है. अब आप जो है वो वॉइस इंटरफेसिंग के थ्रू भी ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं. तो गूगल ने अगर आप गूगल असिस्टेंट की एप्लीकेशंस पे जाएंगे, जो हेलो गूगल है या श्री है, दीज आर ऑल लाइक डिजिटल असिस्टेंट, वॉइस इंटरफेसिंग है यहाँ पे. तो इसी तरह से IoT हब्स में भी देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एंड यू कैन यूज अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज to offer very intuitive and unique user experiences. We want to automate everything. We want to control everything remotely, like sitting remote, and we just want to control everything. We want to see data in real time so that we can benefit from it. So ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहते हैं IoT के थ्रू. तो एक चीज़ होती है फोरकास्ट, कि आप जो है वो फोरकास्ट करते हो किसी चीज़ के बारे में. एक चीज़ है कि प्रेजेंट में जो डिवाइसेस आपके पास चल रही हैं आपको फ्यूचर
प्रिडिक्ट करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, बट आप फिर भी बेस्ड ऑन सम प्रेजेंट फैक्ट्स you can make predictions, right? कि हम we are heading in that particular direction and this is how forecasting and modeling systems work. But अगर आपको अपने करंट सिस्टम्स की घर में जो अप्लायंसेस काम कर रही हैं, अगर आप में उसमें जो एम्बेडेड डिवाइसेस जो कि आईओटी चिप्स होते हैं अगर वो इंस्टॉल्ड हो और आपके पास रियल टाइम डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो, अगर आपके किसी इक्विपमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस आ रहे हो, आप वो रियल टाइम पे सेंस करके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन या वेब इंटरफेस हो जहाँ पे आप वो फ्लक्चुएशंस को अर्ली डिटेक्ट कर सको, तो मे बी आप उस डिवाइस को उस डैमेज से बचा सकते हो कि आप अर्ली डिटेक्ट कर लो कि इसमें ये पर्टिकुलर पार्ट है या कोई भी जो उसका पीस है वो खराब हो रहा है, तो यू कैन रिप्लेस इट ऑन टाइम. एंड दिस इज in this direction a lot of companies moving now, and we are also working with one of the giant company, Australian company, like their primary job is to extract oil from the earth, and they have like sensors installed across their factory, across their devices, to calculate the life expected life of each like piece in the machinery, or as soon as the hours of that object gets complete, they replace it simply. They don't wait to get it fail first and then they replace, because अगर फेल होने का प्रोसीजर का मतलब है कि आपके जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होंगे और मिलियंस में आपको जो है वो लॉस हो सकता है if you are working with something very big. So yeah, this is the basic introduction of what IoT is and why we need IoT and what we can potentially do with IoT. So in case if you guys have any questions related to the basic definition of IoT, and if you have any ambiguity, so let me know. I will answer that first and then I will move to the next slide. You can unmute yourself, you can ask questions, or in case you can also drop a message and Fatma will let me know what the question is and I will answer it. अच्छा, मेरा एक इसमें थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था कि आईओटी आप कह रहे हैं कि मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसके थ्रू हम मल्टीपल सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी. इसमें IoT हब्स क्रिएट होते हैं. बेसिकली होता है उसमें ये, इट्स नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड. ऑब्वियसली अगर आपका एक घर है, आप उसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट हाउस की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, आपके डोर्स हैं या कर्टन्स हैं या आपके एयर कंडीशन है, टीवी है, लाइट्स हैं घर में, ये सारी चीज़ें लेट्स से सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं. तो लाइट ऑन है या ऑफ, तो आपके पास जो है वो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स अवेलेबल. ठीक है, तो आप उन सेंसर्स को यूज कर सकते हैं कि आप कुछ जगहों पे देखेंगे सेंसर्स होते हैं लगे हुए कि as soon as you enter into the room लाइट्स ऑन हो जाती हैं, as soon as you exit from the room लाइट्स ऑफ हो जाती हैं. तो देयर आर सेंसर्स जो कि डिटेक्ट करते हैं आपकी प्रेजेंस को थर्मल हीट के थ्रू. तो वहाँ पे उनके पास सेंसर्स होते हैं जो बेसिकली देयर आर सम कैमरा सेंसर्स एज वेल, there are some microphones sensors as well, there are like moisture detection sensors, voice detection sensors, temperature reading sensors. So there are like different types of sensors available. So आप अगर जब एक स्मार्ट हाउस बनाते हैं तो you need to create a hub. ठीक है ना, वो MQTT based protocol, and I will discuss all of those things in detail once I get to the technology stack section. तो उसमें क्या होता है कि हर डिवाइस जो है ना वो अभी किस स्टेट में है कि अगर लाइट ऑफ है तो वो इन्फॉर्मेशन वो रिले कर देता है टू दी हब. अगर एक कर्टन्स ओपन है तो वो इन्फॉर्मेशन कर देता है रिले वहां पर, और वो सारी स्टेट्स वहां पर मैनेज हुई होती हैं कि घर में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं वो अभी उनकी करंट स्टेट क्या है. उसके बाद आपने लेट से वॉइस इंटरफेसिंग के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन इशू किया कि ओपन द कर्टन्स मे बी, तो वो अब क्या करेगा, उसकी करंट स्टेट चेक करेगा. अगर वो क्लोज्ड है तो वो इंस्ट्रक्शन पास करेगा उस सेंसर को. तो देयर आर सेंसर्स जो कि वन वे डाटा फ्लो भी होता है, यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो भी होता है और बाई डायरेक्शनल डाटा फ्लो भी होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस मोबाइल ऐप के थ्रू या वॉइस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या मे बी वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है इशू कर सकते हैं टू वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन योर हाउस. तो वहां पर जो है वो जा रहा होता है. तो वैसे आप डायरेक्ट डिवाइस के साथ भी वन ऑन वन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, विच इज फ्रॉम आर्किटेक्चरल स्टैंड पॉइंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इसीलिए MQTT वर्क्स ऑन अ पॉप्स अप आर्किटेक्चर, which is like different devices are linked with one hub
which is IoT hub, and then you can build any application जो कि उस hub के साथ बात कर रही होगी, और hub will relay the instruction to the like relevant devices. तो आपके घर के context में yes, hub is centralized thing which is primarily like orchestrating all the instructions that you are issuing to that particular device to relevant sensors in your houses. तो Right. वो प्राइमरी लाइक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हब की. बट ऑब्वियसली इफ देर आर मल्टीपल स्मार्ट हाउसेस तो वो डिसेंट्रलाइज भी हो जाता है, फिर वहाँ पे मल्टीपल हब्स हैं, हर घर के अलग 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 हब्स हैं. और बाज इस तरह की कंपनीज हैं जो ये पूरे सोल्यूशंस ऑफर करती हैं बने बनाए, क्योंकि आईओटी के अंदर प्राइमरली दो साइड्स हैं, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक साइड्स एंड देन देयर इज अ सॉफ्टवेयर साइड. तो वो पूरे रेडीमेड सोल्यूशंस देते हैं इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि आप ये हार्डवेयर सिस्टम्स जाके अपने घर में इंस्टॉल करवा लें, और आप उनको एक सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप इन्होंने दे दी, उसके साथ आप लिंक कर लें, और उसके बाद जो है वो आप पूरे घर की अपनी सारी चीज़ों को उस ऐप के थ्रू जो है वो कंट्रोल करें. तो इट्स सेंट्रलाइज टू वन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, बट इट्स डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबली. लाइक अगर आप इन जनरल बात करें तो वो फिर डिसेंट्रलाइज्ड हब्स होते हैं, जो कि फिर एक मे बी अगर एक कंपनी एक सोल्यूशन ऑफर कर रही है तो उनका एक फिर बैकएंड पे सेंट्रलाइज हब होगा जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट हो रही होगी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट यूजर बिहेवियर पैटर्न, कि वो किस तरह से चीजों को यूज करते हैं. क्योंकि अभी मैं बड़ी सिंपल सी चीज की बात करें आईओटी, बट आईओटी कैन बी ब्लेंड विद मशीन लर्निंग एज वेल. क्योंकि आईओटी लाइक से मेरे घर पे एक स्मार्ट हाउस है और ये सारी डिवाइसेस हैं, मैं इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा हूँ, तो मैं किस टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा हूँ, मैं दिन के 2 बजे रोज आके या आसपास 1 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे एक इशू कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन के, यार एसी ऑन कर दो, कर्टन्स जो है वो बंद कर दो, दरवाजा जो है वो बंद कर दो, ठीक है ना. सिमिलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि गर्मी है, दिन में मैंने एसी ऑन करना है. तो अब आप मशीन लर्निंग के साथ भी सारे को लिंक कर सकते हैं कि जो आईओटी डेटा स्ट्रीम्स बना रहा है वो आपके मशीन लर्निंग सर्वर्स में एल्गोरिथम्स को फीड हो रहा हो, और वो ये पैटर्न्स डिटेक्ट कर सके कि यार आप रोज 2 बजे आके मोरलेस एक सिमिलर इंस्ट्रक्शन देते हो. तो अगर कोई एक बड़ी कंपनी होगी वो मशीन लर्निंग को यूज करते हुए और आईओटी के साथ ब्लेंड करके एक इस तरह का मोबाइल एक्सपीरियंस दे सकता है कि आप मोबाइल उठाओगे 2 बजे, वो आपको रिकमेंडेशन देगा, वुड यू लाइक टू लाइक टर्न ऑन योर एसी, और आप जो है वो जैसे ही ऑन करोगे और वो सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितनी भी है बाकी साथ एग्जीक्यूट कर देगा, तो रिकमेंडेशंस भी आ सकती हैं. तो दीज आर लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. मशीन लर्निंग एक बिल्कुल सेपरेट टेक्नोलॉजी है, आईओटी एक बिल्कुल सेपरेट टेक्नोलॉजी है, बट इन रियल वर्ल्ड आप ऑब्वियसली अ ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, तो इन ऑर्डर टू गेट एंड टू एंड user experience which is like which provides some real world utility. तो बिल्कुल इस तरह से सारी चीजें जो हो सकती हैं. तो let me know if that answers your question, or if you need more clarity, please let me know. This was thank you enough. Thank you. Adeel, there are three more questions. So can I just read them out? Yeah, sure. So one is that do we always need data to create an IoT device? And second is what is the difference between automation and IoT? Third is can we integrate Alexa with IoT? ठीक है. Let's start with question number 1, which was फातिमा, आप थोड़ा सा रिपीट करेंगी Do क्वेश्चन we नंबर 1? always need data to create an नहीं नहीं, IoT? बिल्कुल भी वी डोंट नीड एनी डेटा टू वर्क विद आईओटी. आईओटी जब आप पहली दफा लाइक एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं एनीवेयर, तो वो डाटा प्रोड्यूस करता है, तो आपको पहले से कोई डाटा नहीं चाहिए. उसको इनेबल करने के लिए यू जस्ट नीड मे बी आर्डिनो बोर्ड, और यू जस्ट नीड मे बी रास्पबेरी पाई, और आप उसको फिजिकली किसी लाइक सेंसर्स के साथ लिंक करते हैं, आप उनको किसी एक फिजिकल इक्विपमेंट के साथ लिंक करते हैं. जैसे आपके घर के डोर लॉक्स हो सकते हैं कि आपने डोर लॉक्स के साथ एक आर्डिनो बोर्ड बना के जो है वो लिंक कर दिया, और अब आपके गेट पर कोई भी आता है तो वहां पर आपने एक सेंसर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि कनेक्ट कर रहा है आपके हब के साथ, वो कम्युनिकेट कर रहा है उसको कि कोई दरवाजे पर है. वहां से एक और सेंसर है जिसके थ्रू आप जो है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास कर रहे हैं जो कि आपके गेट को अनलॉक कर देता है. तो देयर कुड बी a blend of different sensors, but पहले से कोई data needed नहीं है. जब the moment you install sensors or the moment you install IoT equipments in your house, they will start producing data for you. और उस data को utilize कैसे करना है उसके लिए there are analytical tools like Tableau and there are other tools as well जिनको आप use कर सकते हो. तो पहले से कोई data की requirement नहीं है. What is question number 2, Fatma? Yeah, so question 2 is
What is the difference between automation and IoT? ऑब्वियसली लाइक आईओटी के थ्रू आप ऑटोमेट कर रहे होते हो कुछ चीज़ों को लेट्स से लाइक आपके ग्राउंड्स है, नेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड्स है, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पे आपने मॉइस्चर डिटेक्शन के सेंसर्स यूज़ किए हैं। और अगेन ये सेंसर्स आपने बनाने नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज लाइक जैसे आर्डिनो है, या आपको डिफरेंट टाइप के सेंसर्स अवेलेबल करता है, उन सेंसर्स को आपने सिर्फ यूटिलाइज करना है। तो मॉइस्चर डिटेक्शन का आपके पास एक सेंसर है, आपने ग्राउंड में डिफरेंट जगहों पे जो है ना 5 7 8 10 जो है वो मॉइस्चर डिटेक्शन के सेंसर्स इंस्टॉल कर दिए और एक हब क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही सॉइल आपकी ड्राई होती है वो डिटेक्ट कर लेता है उसको और एक इंस्ट्रक्शन जो है वो भेज देता है आपके हब को, और हब इंस्ट्रक्शन भेज देता है स्पेंडल्स को। वो डिवाइस होती है जो कि ऐसे पानी दे रही होती है, वो ऑन हो जाती है, वो पूरे ग्राउंड में ऑटोमेटिकली जो है वो पानी दे देते हैं। तो इसमें अब ये जो चीज है हुई है पूरी ऑटोमेट हो गई ना ऑब्वियसली, वरना होना ये था कि कोई जाने किसी ने जाके ग्राउंड में देखना था कि वो ड्राई हो गया है, फिर कहीं से जाके मोटर ऑन करनी थी, पानी देना था। तो उस पूरे मैकेनिज्म को आपने ऑटोमेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आईओटी डिवाइसेस। तो आईओटी बेसिकली हेल्प करता है टू ऑटोमेट प्रोसेसेस, बट इटसेल्फ वो कोई ऑटोमेशन टूल नहीं है। बट या अलग ये है कि आईओटी तो एक टेक्नोलॉजी है और ऑटोमेशन एक उसकी एप्लीकेशन है, कि आप उसको किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को एक्सरसाइज कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। जी थर्ड क्वेश्चन आपका आई थिंक अगेन वो भी आप रिपीट कर दें क्या था? Can we integrate Alexa with IoT? जी बिल्कुल किया जा सकता है, इवन एलेक्सा हो या सिरी हो, क्योंकि एलेक्सा आपको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वॉइस असिस्टेंट ऐप्स बना सकें। जिस तरह से प्ले स्टोर है, इसी तरह से गूगल का और एप्पल का वॉइस एप्लीकेशन के लिए भी स्टोर्स हैं जहाँ पर आप एप्लीकेशंस बना के सबमिट कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिएट योर ओन कीवर्ड्स। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे बैक इन 2017। वो ड्राइवर्स के लिए एक हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाई थी, और वो उनका नेविगेशन लाइक सिस्टम था, और वो उनके डिफरेंट इंटरनल टूल से कनेक्टेड एप्लीकेशन थी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ड्राइवर्स कि वो मोबाइल उठा के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़े कि मैनेजमेंट से क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या करना है। तो वो क्या कर रहे थे कि वहाँ पे एक डिवाइस इन्होंने इंस्टॉल की हुई थी जो कि आपको कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रही थी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, और आपने भी अगर कोई बात करनी है तो हमने उसका नाम रखा था हेलो सैमी। तो सैमी उस कंपनी का नाम था, तो हमने बात कर रहे थे यार हेलो सैमी, और उसके बाद हम कोई एक इंस्ट्रक्शन लाइक इशू कर रहे थे, और वो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हो रही थी लाइक जैसे कि आप मोबाइल ऐप में जाके किसी एरिया पे टैप करते कि यार मैंने जो है वो मैं इस एरिया तक पहुंच गया हूँ, तो आपने मार्क कर दिया है, या एबीसी कोई भी इंस्ट्रक्शन कि आपने कोई आइटम डिलीवर कर दिया है और आपने सिग्नेचर्स ले लिए हैं, तो आपने वो वहां पे जाके जैसे एक वॉइस इंस्ट्रक्शन दी, और वो बैक एंड इंटेंट्स पे मैप होती है, वॉइस इंस्ट्रक्शंस इंटेंट्स पे मैप होती है, और ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग पॉसिबल। So one more question, then we can move forward. Is analytical system behind automation IoT? Is the analytical system behind automation IoT? अच्छा मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ मे बी कि इट्स नॉट मैंडेटरी, बट यू हैव टू यूज इट, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप लाइक एक इवन मीडियम प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं आईओटी के, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम्स होती हैं एट टाइम्स, आईओटी की डिवाइसेस से कंटिन्यूस डेटा इमिट हो रहा होता है, और इन नो टाइम वो एक बिग डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स आउट ऑफ योर डेटा, सो यू नीड some kind of like analytical tool in order to understand your data better, ठीक है ना? तो उसके लिए there are like bunch of different analytical tools available in the market. Tableau is like one of them. There are other tools as well. You can use any of the tool in order to extract patterns out of your data, so that you can use it in a meaningful way, or you can convey meaningful information to the backend audience. Now I will move to the next slide, which is evolution and growth of IT. अब हम अभी बात ये कर रहे थे कि यार व्हाट आईओटी इज, आई थिंक हम सबका एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया होगा व्हाट आईओटी इज। हमने जार्विस की भी बात कर ली, किस तरह से स्मार्ट होम्स में सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। हमने थोड़ी सी बात कर ली कि इनिशियली हमारे पास कम डिवाइसेस थी, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या मोबाइल से,
बट लेटली अब हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं. अब टीवीज़ की बात कर ली हमने, रेफ्रिजरेटर्स की बात कर ली, एयर कंडीशनर्स की बात कर ली, लाइटिंग सिस्टम की घरों में बात कर ली. तो उससे अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ आईओटी अब कहाँ जा रहा है, मतलब अब आगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और प्रीवियस जो 20-30 ईयर्स हैं वहाँ पे किस तरह से ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होके यहाँ तक आई है जिस पॉइंट पे आज हम बात कर रहे हैं. तो बैकग्राउंड की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो द नीड फॉर M2M कनेक्टिविटी हैड ऑलवेज बीन देयर, सो दैट्स नंबर वन. कि ये शुरू से एक इंटेंट थी इंजीनियर्स की कि वो कोई ऐसा सोल्यूशन बिल्ड कर सकें जहाँ पे मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकें. मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी डिफरेंट तरह से लाइक इस्टेब्लिश की जा सकती है एपीआईज के थ्रू इन अ वेरी कन्वेंशनल मैनर, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक रियल टाइम एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से बात कर रही हो, या किस तरह की क्या कोई हम एम्बेडेड डिवाइसेस बना सकते हैं कि जो हम फिजिकल किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाके लगा दें तो हम उससे उसकी सारी इंसाइट्स निकाल सकें. जैसे अभी हम लोग क्यू आर कोड्स भी टू सम डिग्री यूज कर रहे होते हैं, बट क्यू आर कोड की एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट है. तो it's all started from RFIDs. So I'm not sure any of you heard about like RFIDs or not. Basically RFID is radio frequency IDs or radio frequency identification. So आपने कुछ स्मार्ट टीवीज में भी देखे उसमें स्मार्ट लेबल्स आते हैं, या NFC is different बट समवट सिमिलर टू RFIDs, के जहाँ पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन आप जो है वो स्टैब्लिश कर रहे होते हैं विद सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. आपका फोन में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए या जो दूसरी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, तो एक वन डिवाइस कुड बी योर टीवी, अदर डिवाइस कुड बी योर मोबाइल फोन, ठीक है ना. तो ये डिवाइस टू डिवाइस या M2M की बात कर रहे हैं, मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी की. तो देयर एट वन पॉइंट इन टाइम देयर वर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, RFIDs और दूसरी NFC की मैं बात कर रहा था, बट RFID इज द प्राइमरी वन, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं. इट्स अ स्टिकर टाइप ऑफ लाइक स्मार्ट लेबल्स, जो कि पहले ट्रैकिंग के लिए यूज होते थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, डिलीवरीज में. आप डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर वो स्टिकर्स जो है वो लगा सकते हो, और फिर आप उनको मोबाइल्स के थ्रू वो उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करके डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, और आप उसकी GPS लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हो, वो डाटा ट्रांसमिट करता है. तो RFIDs जो है वो बड़ी सिंपल सी एक टेक्नोलॉजी थी जो कि यूज हो रही थी एट वन पॉइंट इन टाइम, स्पेसिफिकली इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स. बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं थी IoT की, ऑल्दो लाइक वो भी मशीन टू मशीन लेवल कनेक्टिविटी थी. IoT में भी मशीन टू मशीन लेवल या डिवाइस टू डिवाइस लेवल कनेक्टिविटी होती है, बट RFID कर तो वही काम रहा था, बट कोई स्पेशलाइज टर्म उस वक्त नहीं दी हुई थी इसको कि यार ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्योंकि वो अर्ली डेज थे वो. So then after some point, someone thinks like Kevin Ashton, who coined the term IoT first time. So basically, he reinvent RFIDs and convert that into a networking technology. And he was a MIT professor, Kevin Ashton, जिन्होंने पहली दफा ये कॉन्सेप्ट दिया कि यार ठीक है, क्योंकि he felt कि दिस इज समथिंग विल गो फ्रॉम देयर, ठीक है ना, वो मजीद एक्सपेंड ही होगा, और वहां पे और नई सेट ऑफ डिवाइसेस आएंगी. तो RFID की कुछ सर्टेन लिमिटेशंस थी, वो कुछ पर्टिकुलर यूज केसेस में काम करता था. वी नीड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी एज वेल सो दैट वी कैन प्रोग्राम आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो उसके लिए वी नीड समथिंग एल्स, बट जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है जो RFID करती थी, to establish machine to machine connectivity, but we want to achieve more from the new technology. So वहाँ पर he coined the term IoT first time, or the idea behind was ke reinventing RFID in a different way, and he converted that into a networking technology. So that was the background of how IoT started. Why it's growing at an exponential rate. Let's talk about some of the growth factors. Introduction of more and more smart appliances. This is something we have already discussed. कि अब आप हर चीज के आगे देखेंगे कि स्मार्ट का वर्ड लगता जा रहा है, कि स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं, हर चीज के आगे स्मार्ट हाउसेस हैं, स्मार्ट कार्स हैं. तो जितनी भी स्मार्ट अप्लाइंसेस हैं बेसिकली वो बिहाइंड द सीन्स IoT को यूज कर रही हैं, और वो IoT की सेंसर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू वो बेसिकली स्मार्ट हो रही हैं, क्योंकि हम उनको प्रोग्राम कर रहे हैं, हम रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली वो डिवाइसेस जो है वो बिहेव कर रही हैं. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अब लेटली देख रहे हैं हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, तो इसकी वजह से अप्लाइंसेस बढ़ रही हैं.
सेंसर्स आर फिटेड एवरीवेयर अक्रॉस एवरी डिवाइस कलेक्टिंग रियल टाइम डाटा. तो अब जो सेंसर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. डिफरेंट जगह पे एप्लीकेशंस हैं, तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर सेंसर्स यूज़ हो रहे होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स यूज़ हो रहे होते हैं. सो सेंसर इज़ अ वेरी जेनेरिक टर्म. आप जब भी इसको समझेंगे आईओटी को तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स. Audio sensors, video sensors, noise detection sensors. There are some other types of sensors as well. We will discuss about them later. But different types of sensors are there. तो वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. वो सेंसर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं. आपने एक वीडियो सेंसर लगा दिया है कहीं पे एक रोड के ऊपर, आपने जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमराज होते हैं वो लगा दिए हैं, वो कंटिन्यूसली जो है वो वीडियो स्ट्रीम्स ले रहे हैं. वो वीडियो स्ट्रीम्स कहाँ जा रही हैं? अगर वो वीडियो स्ट्रीम्स क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि कराची को, अगर एक लाहौर में उन्होंने प्रोजेक्ट किया था सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, सर्विलेंस कैमरास अक्रॉस लाहौर ऑल मेजर लोकेशंस, लाखों की तादाद में कैमरास लगा दिए थे. तो डू यू थिंक कि कोई एक बंदा या इंसान पीछे बैठ के उनको मॉनिटर कर सकता है और रियल टाइम पे आपको हेल्प कर सकता है कि कोई कहीं पे कोई रॉबरी हो रही हो तो वो रियल टाइम पे आपको बता दे कि हाँ यार ये गुलबर्ग के किसी एरिया की गली के अंदर जो है ये हो रहा है, तो जाके वो पुलिस वहां पे पहुंच जाए. तो ऐसा रियल टाइम पे नहीं हो सकता. उनको हम पैसिव मोड में यूज कर रहे होते हैं, एक्टिव मोड में यूज नहीं कर रहे होते उस डाटा को. जब कोई वारदात हो जाती है उसके बाद हम एज एन एविडेंस कि वो हुई थी, हम वहां से वो फुटेजेस निकाल के यूज कर रहे होते, रियल टाइम यूज नहीं कर रहे होते. बट इन सम कंट्रीज वो इसको एक्टिव डाटा के तौर पे यूज कर रहे हैं. और व्हाट दे आर डूइंग इज वो जो डाटा वीडियो स्ट्रीम्स जा रही हैं बैकएंड पे, तो उन्होंने इसको देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एल्गोरिथम्स, राइट? तो उन एल्गोरिथम्स के, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सॉरी, वर्क फ्रॉम होम में लाइक एट टाइम्स मल्टीटास्किंग भी करना पड़ रही होती है. तो समवन नोज माय, समवन इज ऑन माय डोर. तो just let me open this again. So why it's growing at an exponential rate? हम लोगों ने बात की there are a lot of sensors. तो कुछ countries में वो किस तरह से इस data को use कर रहे हैं कि there are object recognition algorithms like YOLO and there are other libraries available. तो वो उस continuous data streams को लेते हैं और फिर एक इन्होंने एक objects की list बनाई हुई है जो कि मे बी like different dangerous objects हैं, मे बी guns हो, pistols हो या और कोई different चीज़ हो. तो वो जो real time data streams जा रहे हैं वो उनको process कर रहे हैं, उसमें से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद किस जगह पे वो इवेंट हो रहा है उसके लेट लॉन्ग लोकेशन उठा के, अगर इन केस इफ दे फील के कुछ ऐसा हो रहा है जो मे बी गलत है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उस वक्त कैप्चर हो रहा है या उन्होंने अपने क्रिमिनल्स डेटाबेसेस के साथ उन वीडियो स्ट्रीम्स को लिंक किया हुआ है कि अगर किसी ऐसे बंदे की पिक्चर को वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं जो कि क्रिमिनल है, तो वो पुलिस को डायरेक्ट एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेज रहे हैं विद द पिक्चर और विद द लेट लॉन्ग लोकेशन और टाइम, कि किस टाइम पर किस जगह पर ये चीज़ जो है वो इंसिडेंट एक्चुअली हो रहा है. तो वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही है. ठीक है ना. तो अब ये क्या है कि आईओटी के थ्रू ये बड़ा इजी हो गया है एज कम्पेयर टू लाइक आपको कोई हजारों लोग नहीं चाहिए जो बैकएंड पे आपके लिए काम करें. आपने सिस्टम्स जो है वो लगा दिए और वो आपको रियल टाइम बेसिकली हेल्प कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को रोकने से, रादर देन कि आप पैसिव मोड में जाके उसको प्रोसेस करो और रोको. आप एक्टिव मोड में जाके काम करो और ऑन टाइम में भी आप क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी कर लो और मे बी अगर कोई एक्टिविटी हो रही हो आप उस वक्त उसको रोक सको तो आप रोक भी लो. तो ये पूरा इकोसिस्टम लाइक इस तरह से जो है वो काम कर रहा है. तो सेंसर्स आर फिटेड एवरीवेयर. सो सेंसर्स की बड़ी डिफरेंट टाइप्स हैं. तो आप एक इक्विपमेंट वीडियो सर्वेलेंस कैमरा भी है, तो दिस कुड बी लिंक विद सम आईओटी हब एज वेल जो कि डाटा स्ट्रीम्स पास कर रहा हो. और देयर आर वेरी टाइनी सेंसर्स एज वेल जो कि टेम्परेचर डिटेक्शन वगैरह के होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो. और एट टाइम्स आप जो है वो कंपाउंड सेंसर्स यूज करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स यूज करते हो इन ऑर्डर टू अचीव लाइक डिफरेंट रिजल्ट्स.
uh, and there is a need for some tedious task or develop ability to control things remotely. So for these like reasons, like 1 2 3, we discussed top 3 reasons. This is why it's growing exponentially. Now we talk about some of the key drivers of the widespread adoption of IoT across industries. Enablement की अब हम लोग यहाँ पे बात करें, इनेबल हम किस तरह से हो रहे हैं. देयर इज एडवांसमेंट इन कनेक्टिविटी इन नेटवर्क कैपेबिलिटीज, कि जैसे हम जितने बेहतर इंटरनेट की बात करते हैं उतना बेहतर हम डेटा ट्रांसमिट कर पाते हैं, उतना बेहतर हम डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं. अब हमारे पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप फिक्स्ड सर्वर्स के ऊपर ये काम करोगे, जो डेटा होता है आईओटी के थ्रू वो डेटा स्ट्रीम्स होता है और वो कंटिन्यूस ग्रोइंग डेटा होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस दैट डेटा ऑन अ फिक्स्ड साइज सर्वर. कि एक सर्वर है जिसकी फिक्स्ड कंप्यूटेशनल पावर है, अगर आप वहां पर वो प्रोसेस करोगे तो एवरी नाउ एंड देन लाइक यू विल फेस डिफरेंट लिमिटेशंस और आप उसको सक्सेसफुली कर नहीं पाओगे. मोस्ट ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, तो वहां पर जैसे ग्रोइंग डाटा होता है उसी तरह से आप स्केल भी कर पाते हो. तो बेसिक ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जिसकी वजह से भी ये यूज केसेस पहले भी थे, लेकिन पहले भी ये इसलिए इतने ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, उनको सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी. बट अब क्या है कि सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है. तो हमने पहले कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डिस्कस किए ऊपर कि क्या एडवांटेजेस हैं या क्या वजह है जिसकी वजह से ये रेट बढ़ रहा है, आईओटी ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है. और फिर हमने इनेबलमेंट की बात की कि किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इनेबल कर रहे हैं बेसिकली आईओटी की ग्रोथ को, कि हमारे पास बेटर नेटवर्क कनेक्शंस हैं, हमारे पास इंप्रूवमेंट है इन क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारे पास बेहतर एनालिटिकल टूल्स हैं. हमारे पास पहले जब वो एनालिटिकल टूल्स नहीं थे अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, तो प्रॉब्लम ये था आप डाटा कलेक्ट कर लो भले से, लेकिन वो डाटा इतनी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड इवेंचुअली आपके पास आ रहे हैं कि आप उसमें से कोई पैटर्न ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते खुद से. तो अब आपके पास जब एनालिटिकल टूल्स भी हैं जिसके थ्रू आप आपकी डाटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई हैं, तो उस वजह से अब क्या है कि इनेबलमेंट ज्यादा हो गई है और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज यूज कर रही हैं. और जो फोर्थ इसके अंदर आइटम है अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट डिवाइसेस. लाइक प्रीवियसली इफ सर्वर्स आर टू एक्सपेंसिव, इफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज टू एक्सपेंसिव, इफ जो डिफरेंट इंटरनेट इज टू एक्सपेंसिव, या जो एनालिटिकल टूल्स हैं अगर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर इसकी अडॉप्शन रेट कम होता है. रिगार्डलेस यूटिलिटी हो, कुछ बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट्स में भी उसको पर्टिकुलर केस को ऑटोमेट करने के लिए मे बी यूज कर रहे हो, बट हर कोई यूज नहीं कर सकता. बट इसको इतना इन्होंने सिंपल कर दिया है, ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है, बहुत सारे डिजाइन इसके अवेलेबल कर दिए हैं कि जैसे आर्डिनो बोर्ड है, उन्होंने अपने बोर्ड्स के डिजाइन को ओपन सोर्स करके पब्लिक कर दिया है. एनी कंपनी कैन बिल्ड आर्डिनो बोर्ड्स, राइट. तो वो बना के उसी पैटर्न के ऊपर उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स और पूरे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स की डिजाइन आउट कर दिए हैं, आप वो पब्लिकली अवेलेबल कर दिए हैं, और आपको एक 4-5 हज़ार रुपए का आर्डिनो बोर्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप आईओटी के कुछ केसेस इवन घर पे बैठ के आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी खुद से ऑटोमेट कर सकते हैं. और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारे लोग इस तरह की चीज़ें कर भी रहे होते हैं. तो आई होप आप लोग इससे फेमिलियर भी होंगे. तो वो डिवाइसेस भी बड़ी सस्ती हैं अब, इस वजह से एडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा है और इस वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. और अब एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स अभी वी हैव अराउंड लाइक 15 बिलियन IoT devices, जो कि चली जाएगी eventually to 30 billion in next 6 to 7 years, which is a huge number. जितनी इस अर्थ पे population नहीं उससे ज़्यादा devices होंगी. और enablement के एक और फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो IP वर्जन है. प्रीवियसली जो IP वर्जन था जो कि अभी भी टू सम डिग्री यूज हो रहा है, IP वर्जन 4. उसके बाद हमारे पास आई गया IP वर्जन 6. तो IP वर्जन 4 में हमारे पास जो एड्रेस स्पेस है वो लिमिटेड है. और IoT में होता है क्या है कि आपकी सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपके पास एक IP एड्रेस का होना जरूरी है. विदाउट हैविंग एड्रेस आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. तो हमारे पास IP वर्जन 4 में थी लिमिटेड एड्रेस स्पेस के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से, इंटरनेट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से वी रन आउट ऑफ लाइक एड्रेस स्पेसेस, जिसकी वजह से कम्युनिटी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू IP which is IP version 6, जिसके अंदर रहते हुए we have enough address spaces कि हम for next 30-40-50 years अगर इसी रेट से ग्रो करते भी रहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो करते भी रहते हैं, still we will have enough addresses to provide or assign unique addresses to each device.
Uh, then I would like to answer some common questions before you ask some questions. यहाँ पे मैंने खुद ही कुछ questions जो जब मैं different लोगों के साथ interact करता हूँ जो यहाँ पर आके पूछते हैं वो मैंने list down कर दिए थे कि every device has its unique ID which makes the communication possible among them. Is it like possible to assign addresses to all the devices in the world? कि और जब when I said all the devices, let's say कि हर घर के अंदर कुछ दरवाजे हैं वो एक डिवाइस है, हर घर के अंदर कुछ कर्टन्स हैं वो एक डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वहाँ पर टीवीज हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये सारी लाइक डिफरेंट डिवाइसेस हैं. क्या हम उन सबको कोई एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं अगर हम उसको आईओटी के रैल्म में लाना चाहते हैं, अगर हम उसको आईओटी से कनेक्ट करना चाहते हैं? तो आंसर इज यस. विद द हेल्प ऑफ आईपी वर्जन 6 वी हैव अ ह्यूज एड्रेस स्पेस विच इज इन ट्रिलियंस, राइट. सो हम हमारे पास वो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है एड्रेस स्पेस का. और अगर किसी पॉइंट पर होगा भी तो जैसे आईपी वर्जन हम 4 पर आए और आईपी वर्जन 6 आ गया तो आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम ऑब्वियसली लाइक आप इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी को टारगेट नहीं कर रहे होते, आप नेक्स्ट अपने 10 to 20 years ग्रोथ को टारगेट कर रहे होते हो. After that growth period, we may have like IP version 7 or IP version 8, which may be more complex. We will have more address spaces and we can connect and accommodate more and more devices. Where we can store this data, like जो continuous data streams होती हैं, let's say कि एक मशीन लगी हुई है या कार प्रोसेसिंग यूनिट है, उस एक कार प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, हर इक्विपमेंट के अंदर डिफरेंट पीसेस हैं, राइट. तो हर पीस की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो आवर्स के अंदर है, वो किसी की 5,000 आवर्स है, किसी की 10,000 आवर्स है, किसी की मे बी 20,000 आवर्स है. तो हमने उसकी एक्सपेक्टेंसी को देखना है कि वो पुर्जा या वो इक्विपमेंट का जो पीस है वो कितने अपने आवर्स ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, एग्जॉस्ट कर चुका है. और दूसरा ये है कि क्या उसकी एफिशिएंसी अभी वही है या एफिशिएंसी ड्रॉप होने लग गई है. तो अगर मैंने वो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है और मैं सेंसर्स वहां पे जो है वो इंस्टॉल कर रहा होता हूँ तो वो कंटिन्यूसली जितना वो डिवाइस प्रोसेस ऑपरेट आप करेंगे वो डेटा स्ट्रीम्स पॉपुलेट होती रहेंगी, जिसे हम टेलीमेट्रिक डाटा कहते हैं. टेलीमेट्रिक डाटा है इसके जो मेटा डाटा आपकी इक्विपमेंट जो फिजिकल इक्विपमेंट है उसमें आप सेंसर्स इंस्टॉल करके उसके प्रोसेस के दरमियान जो डाटा एक्यूमुलेट करते हैं जो कि डाटा स्ट्रीम्स होती हैं वो टेलीमेट्रिक डाटा होता है जो कि हम ट्रांसफर करते हैं टू द बैक एंड और फिर हम डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स के थ्रू बता सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स की हेल्थ कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. If there is any drop in efficiency as compared to like previous week, previous month, we can say like there is 6% drop in efficiency. So और हमने as a company like एक threshold decide किया हुआ as soon as there is drop in efficiency of more than 10%, we have to replace that equipment regardless वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, ताकि हम हर वक्त हर ऑप्टिमल स्टेट में अपने इक्विपमेंट को रन कर रहे हो और फेलियर्स को हम जो है वो अवॉइड कर सकें. तो ये तो हम उसके लिए हम जनरली वी प्रेफर टू स्टोर डाटा ऑन क्लाउड कंसीडरिंग ईज ऑफ स्केल. यू हर्ड a lot about like AWS, right? Auto scalability, every this is why they use the word elastic with every service. Elastic means like elasticity, right? You can stretch, you can add more. तो सेम उन्होंने कहा है कि यार आपके इलास्टिक सर्वर्स हैं, you can add more bandwidth on demand, you can scale up, scale out. तो स्केल डाउन भी आप कर सकते हैं जब आपके पास उतना ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक स्पाइक आता है तो आप स्केल अप कर लो. तो देयर आर वेरियस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल. तो जनरली सारा डाटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा होता है. और इसके अलावा द लास्ट थिंग इज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रेडिशनल सिस्टम्स टू इंटरप्रेट डेटा जो कि हम IoT डिवाइसेस के थ्रू कलेक्ट कर रहे होते हैं. बिल्कुल किया जा सकता है अगर हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, हम एक या दो कोई IoT हमने बड़े सिंपल से सेंसर्स इंस्टॉल किए हुए हैं और उसके थ्रू हमने एक अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया हो और वो प्रोजेक्ट पे हम पीछे कोई MySQL या PostgreSQL डेटाबेस यूज कर रहे हो, वहाँ पे डाटा डंप हो रहा है और हम SQL क्वेरी करके कोई मीनिंगफुल डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें, यस दिस इज समथिंग पॉसिबल. बट जब आप प्रोडक्शन ग्रेड पे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ काम कर रहे होते हो तो जितना डाटा प्रोड्यूस होता है फिर उसमें डाटा एट टाइम्स हेट्रोजीनियस सोर्सेज से आ रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा आ रहा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा आ रहा होता है. सो यू नीड सम डाटा प्रोसेसिंग टूल्स, analytical tools, Hadoop maybe, big data processing tools, so that you can process that data in a much effective way. So these are three common things
जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो टाइम्स लिमिटेशंस होती हैं, और उनके ये तीन लाइक आंसर्स हैं. बिग डाटा यू कैन टैकल विद Hadoop. SDFS with address spacing. Yes, you can assign address to like everything in the world right now with the help of IP version 6. And generally, we store data on the cloud. So, again, if you guys have any questions, let me know. Then I will go to the next slide. Um, there is someone, Awais Ali said something I don't understand. So if you can unmute जी yourself जी. and whether that's a question or not. Oves, if you can directly ask that question, please go ahead. Whether that was a question or a comment, I don't understand. So So, can you read out what the comment is? yeah, so enough addresses with the IPv6 that we can assign IP to all atoms in the universe. And then another comment on Universe? this. नहीं, but on the surface of Earth, फिर I think उसने Yeah. उसको वो करके on the surface of Earth still a big number. Yeah, it's a big number. मगर अगर आप 2 raised to the power 128 जाओ, तो आप एक बहुत बड़े नंबर तक जाते हो. तो अगर आप एक सिंपल सी मैथ्स रन करते हैं कि पूरे अर्थ की ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, वो बिलियंस में है, राइट? 10-15 बिलियंस, आई एम नॉट श्योर. कोई भी एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 20 बिलियन है, शायद इससे कम ही है. तो हर बंदे के पास अराउंड लेट्स से अगर 10 डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस भी, ऑब्वियसली हर कोई इंटरनेट यूज भी नहीं कर रहा उस तरह से. अगर आप बहुत सारे लोगों को निकाल दें, अगर आप अभी फिलहाल फॉर द आर्ग्यूमेंट से हम इंक्लूड कर लें, और एक हम रफ नंबर पे बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं कि यार ठीक है, और 10 डिवाइसेस हैं, लेट्स से कि यार किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास डेस्कटॉप है, एक स्मार्ट टीवी, और दी स्मार्ट टीवीज रेफ्रिजरेटर्स आर लाइक शेयर्ड अप्लायंसेस. तो घर में अगर 10 लोग हैं तो वो एक या दो होंगी, 5 लोग हैं तो एक या दो होंगी, 3 होंगी. तो हर किसी के पास अपनी नहीं होती है. तो आप उस हिसाब से लाइक एक नंबर जाते हैं कि आपने 5 डिवाइसेस ले लिए हैं पर यूजर, आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट टू अ नंबर, राइट? देन यू कैन कैलकुलेट 2 raised to the power 128, और यू कैन कंपेयर दीज टू नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर योरसेल्फ. ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? No. ओके. हाउ वी गेट देयर, एक और एवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनेट के डिफरेंट एराज रहे. दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अभी हम इंटरनेट के एक एरा के बारे में आज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बट और भी डिफरेंट एराज हैं, इंटरनेट ऑफ कंटेंट, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ पीपल. तो मैं ब्रीफली लाइक थोड़ा थोड़ा उसको टच करता हुआ जाऊंगा कि बिफोर इंटरनेट यानी प्री इंटरनेट, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ भी नहीं था. तो प्री इंटरनेट ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन थी, मे बी ओवर अ फोन, मे बी ओवर SMS, राइट? फोन एंड SMS टेक्नोलॉजीज वर देयर. तो आप जो है वो उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते थे. तो वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, विच इज नॉट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन. लाइक आप एक जैसे फोन पे आप बात कर रहे हैं, इट्स एंड पे भी एक ह्यूमन है, उस एंड पे भी ह्यूमन है, तो इट्स ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, या SMS भेज रहे हैं. तो ऑन दी अदर एरा जो कि इंटरनेट के साथ ही स्टार्ट हुआ था, विच इज वेब 1.0, इंटरनेट ऑफ कंटेंट. तो इंटरनेट ऑफ कंटेंट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर. आप ज्यादातर अपनी वेबसाइट्स बनाते थे, कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स. तो आप उस पर कोई गेम्स नहीं बना रहे थे, आप उस पर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नहीं बना रहे थे. वो बड़ी सिंपल सी वेबसाइट्स होती थी कि कंपनी क्या है, आप उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, या आप उनको उनकी टीम क्या है, वो अबाउट अस सर्विसेज, कुछ एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप बता दो. किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने स्पोर्ट्स पे एक वेबसाइट बनाई है, तो आप हिस्ट्री लिख दो क्या है. आप जो WWW एरा है, प्राइमरी जो वेब 1.0 है, इंटरनेट ऑफ कंटेंट, जो कि यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो है कि सर्वर टू क्लाइंट डाटा आ रहा है, आप रिक्वेस्ट करते हो आपको क्या डाटा चाहिए, सर्वर प्रोसेस करता है और आपको वो कंटेंट सर्व कर देता है. तो वो इंटरनेट ऑफ कंटेंट कह रहा था. देन वी इंटर इनटू वेब 2.0, व्हिच इज इंटरनेट ऑफ सर्विसेज. क्योंकि विद Web 2.0, we have capability of full bidirectional communication. फ्रंट एंड सर्वर से सर्वर फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट जो है वो कर सकता है. आप डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर सकते हो, आप सॉकेट्स के थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो. तो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन एक चीज़ है, हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो. तो उसके साथ हम लोगों ने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स देखे. देयर आर अ लॉट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑर्डर्स दे रहे हो, जहाँ पे डायनेमिक डाटा आ रहा है, डायनेमिक पेजेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप कैटलॉग्स क्रिएट कर रहे हो, कैटलॉग के पेजेस बन रहे हैं, डायनेमिक डेटाबेस ड्रिवन आप कह लो तो ज्यादा बेहतर है कि डायनेमिक डाटा आ रहा है, डेटाबेस ड्रिवन, डेटाबेस में कहीं से डाटा पॉपुलेट हो रहा है.
वो स्टैटिक डाटा नहीं है। फिर वी इंटर इनटू एन एरा ऑफ इंटरनेट ऑफ पीपल, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, उसमें स्काइप, फेसबुक, यूट्यूब, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट की, कि आप वीलॉग्स बना रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप पोस्ट लिख रहे हैं वो ट्विटर पे डाल रहे हैं, या आप जो है वो फेसबुक पे डाल रहे हैं, आप जॉब एड पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन पे, दिस इज ऑल यूजर जनरेटेड कंटेंट। दिस इज अनदर एरा ऑफ इंटरनेट ऑफ पीपल। उसके बाद अब हमारे पास आया इंटरनेट ऑफ थिंग, विच इज लाइक डायरेक्ट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन एक सेंसर है, ठीक है ना, वो एक सर्वर के डाटा ट्रांसमिट कर रहा है जो कि एक मशीन है। सेंसर और मशीन की या सर्वर की जो कम्युनिकेशन है, दैट्स मशीन टू मशीन, राइट। तो आप उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए। सो देयर आर डिफरेंट यूज केसेस। तो अभी आज हम जिस चीज पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। इंटरनेट ऑफ कंटेंट, वेब 1.0 क्या था, स्टैटिक कंटेंट वेब 2.0, लाइक डायनामिक कंटेंट डेटाबेस ड्रिवन, देन वी हैव इंटरनेट ऑफ पीपल, सोशल मीडिया विच इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, के यूजर्स लिख रहे हैं, और फिर अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब हमारे पास मशीन जनरेटेड डाटा आ रहा है। मशीन जनरेटेड डाटा है ये। सोशल मीडिया पे यूजर जनरेटेड डाटा आ रहा था कि आप वीडियोस डाल रहे हो वो भी एक डाटा है, आप पोस्ट डाल रहे हो वो भी एक डाटा है, वो यूजर जनरेटेड डाटा है। पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारे पास मशीन जनरेटेड डाटा आ रहा है। तो ये डिफरेंट एराज हैं ऑफ इंटरनेट। अब हम बात करते हैं थोड़े से एडॉप्शन रेट के बारे में। दिस इज वन कम्युनिटी जिसने एक फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग टूल पे काम किया, और इन लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया और कुछ हिस्टोरिकल डाटा पे काम किया और कुछ फोरकास्ट पे काम किया कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं ऑन 2022, राइट, एंड देयर आर अराउंड 13.1 बिलियन डिवाइसेस। और जब मैं इन डिवाइसेस की बात करूं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, देयर आर 13.1 बिलियन डिवाइसेस। अगर हम इसको एक पाई चार्ट बनाएं और डिवाइड करें तो 30-40% will be mobile phones, 30% will be your laptops, 10, 15, 20% will be your desktops, right? And 20-25% will be other devices, or other devices include different types of sensors, or maybe wrist watches, smart bands, smart glasses, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट टीवीज। सो आप अभी वो इतनी छोटी कैटेगरी है कि हम अदर्स में इन सबको डाल देते हैं, रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस को, तो इट्स अराउंड लाइक 25%। और इन सबको मिला के, क्योंकि सारी की सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं, सबको एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक आईपी एड्रेस नेम स्पेस चाहिए, तो वी हैव करंटली 13.1 बिलियन, ठीक है ना, डिवाइसेस। फोरकास्ट ये बाय 2013 वी विल हैव लाइक 15.1 बिलियन, बाय 2024 वी विल हैव 17.1, ऑल द वे इफ वी गो टू 2030 यू कैन सी it's a rise, continuous rise. We are standing on a curve, which is exponential curve. We are heading in that direction, which is like devices are continuously increasing. By 2030, we will have around 30 billion, 29.4 billion devices जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होगी। अगर आप उसमें एक ट्रेंड, और अब आप सेम पाई चार्ट को फ्यूचर में अभी से 7 साल आगे जाके देखेंगे तो वो पाई चार्ट बड़ा अलग किस्म का दिखेगा। आपके पास मोबाइल फोन्स में भी 20% पे चले जाएं, लैपटॉप्स में भी 10% पे चले जाएं, डेस्कटॉप्स में भी 5% पे चले जाएं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो अदर डिवाइसेस हैं उनके हमारे पास बंच ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ सकती हैं जो मे बी फोन को रिप्लेस कर दें। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ और स्मार्ट अप्लायंसेस आ जाएंगे, उनकी कैटेगरीज होंगी। अगर उस अदर के बकेट को रखें जो कि अभी शायद 25% है बाय 2030, क्योंकि जो एक्चुअल इंक्रीज है वो आईओटी बेस्ड डिवाइसेस में आ रहा है, क्योंकि वो बड़ी चीप डिवाइसेस हैं, वो आप कनेक्ट करते जा रहे हो और आप उस पर डिफरेंट यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन जो है वो आप बिल्ड कर रहे हो, तो उस पाई चार्ट में उसका जो शेयर है वो डेफिनेटली इंक्रीज करता हुआ आपको नजर आएगा अगर आप ड्रिल डाउन करोगे इस डेटा को टू द पाई चार्ट लेवल। बट इन जनरल लाइक आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इंक्रीज इन डिवाइसेस। ये यूजर्स नहीं है, यूजर्स आपकी जितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, यूजर्स आपके उससे कम हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास यूजर्स कम होंगे, डिवाइसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडॉप्शन रेट है, और इस एडॉप्शन रेट को दिखाने का रीजन ये है कि आगे जाके जब मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी की, आईओटी की क्या टेक्नोलॉजीज हैं, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं यूज केसेस पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसकी जर्नी पे बात कर रहा हूँ किस तरह से ये बढ़ रहा है। बट यू कैन सी अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो इन आईओटी, तो व्हाट टेक्नोलॉजीज यू नीड टू लर्न, ए बी आप उसका फ्यूचर देख रहे हो कि क्या है, कि एक कंटिन्यूस राइज है, और यहाँ पे ये कंपनीज प्रेडिक्ट कर रही हैं बेस्ड ऑन द यूजेज कि आगे जाके फ्यूचर क्या होगा। तो आप उस हिसाब से जब टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हो तो आप
इसी ग्रोथ के साथ आपकी करियर ग्रोथ भी लिंक हो सकती है ऑब्वियसली लाइक जब ये डिवाइसेस आएंगी तो दे नीड समवन हु produce these devices right who will create different IoT based experiences तो आप कन्वेंशनल मोबाइल ऐप वेब ऐप पे ही काम करते रहोगे अगले 10-20 साल भी तो ये भी एक चॉइस है ऑब्वियसली उन एप्लीकेशंस खत्म नहीं होने लगी वो भी एप्लीकेशंस रहेंगी बट उनका जो शेयर है मार्केट में वो इवेंचुअली थोड़ा सा श्रिंक करेगा और डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग ऐड हो जाएगी तो प्रोग्रामिंग विल बी देयर सो कोई अगर एग्नोस्टिक प्रोग्रामर है जो कि उसने लिंक नहीं किया वो अपने आप को जस्ट टू वन पर्टिकुलर डिवाइस वो तो थ्राइव बड़े आराम से करेगा बट अगर आपने लिंक किया हुआ अपने आप को मोबाइल डेवलपर खाली या आप जो है वो सर्वर साइड एपीआई डेवलपर हो तो किसी पॉइंट पे आके मे बी यू विल फेस सम limitations और अगर आप अपने आप को इवॉल्व करते हो with the change of technology तो it will be easy for you to set future goals for yourself and also you can see कि यहाँ पे काफी room है for a career growth और ग्रोथ की वैसे in terms of like in our industry generally we linked it with designations which is doesn't make sense at all कि आपका कोई भी designation हो principal software engineer हो या आप engineer हो at the end of the day you are doing the same thing right designation is more about seniority designation is maybe more about आप earn ज़्यादा कर रहे होगे maybe दूसरों से but अगर आप अपनी growth को link नहीं करते designation से अगर आप link करते हो technology की learning से तो you will have a better career ठीक है तो हम नेक्स्ट जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पे अच्छा अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे ज्यादा जा रहा हूँ क्योंकि जो मुझे इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर करना था दैट्स समथिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड तो हम जब बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तो आई विल टेक यू टू दैट स्लाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेंसर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टिविटी डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन ये एक एंड टू एंड एक्सपीरियंस है कि सेंसर्स किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं सेंसर्स किस तरह से डेटा एमिट करते हैं टू द आईओटी हब्स किन चैनल्स के थ्रू एमिट करते हैं वो हम कनेक्टिविटी में डिस्कस करेंगे फिर हम सर्वर्स डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं आईओटी हब्स डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम्स को टैकल कैसे करते हैं वी विल डिस्कस दैट इन डेटा प्रोसेसिंग सेक्शन देन वी विल डिस्कस अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन कि जब हम डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स यूज करते हैं या मे बी हम बिग डेटा के टूल्स लाइक हडूप यूज करते हैं तो हम आखिर में उस डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं रॉ डेटा को टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट और फिर हम यूजर इंटरफेस के थ्रू हमें क्या इंटेलिजेंस मिल रही होती है क्या इंसाइट्स मिल रही होती हैं जिसकी बेसिस पे हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं ठीक है ना तो ये हम 3 4 इसके मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स इनको डिस्कस करेंगे और फिर हम इसका एक आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा हाई लेवल पे देखेंगे हाउ आईओटी प्रोडक्ट्स आर जर्नली आर्किटेक्ट तो हम आई विल एक्सप्लेन कि इनके क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं और डेटा फ्लो पूरा जो है उसका किस तरह से होता है ठीक है तो सेंसर्स एंड डिवाइसेस की हम जो है वो बात कर रहे हैं तो सेंसर्स इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं हमने बात की थी मॉइस्चर डिटेक्शन सेंसर टेम्परेचर डिटेक्शन सेंसर ह्यूमिडिटी डिटेक्शन सेंसर्स thermal heat detection sensors we have microphone sensors video streaming sensors ठीक है ना तो we have bunch of different types of sensors and when it comes to devices we have Raspberry Pi we have like Arduino क्योंकि ये sensors जो होते हैं ये आप डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं सेंसर्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एनवायरनमेंट में से डाटा कैप्चर करते हैं कलेक्ट करते हैं और फिर आपने उस डाटा पे कोई लॉजिक अप्लाई करनी होती है तो वो जो लॉजिक के लिए वो डाटा हैंड ओवर कर देते हैं टू योर डिवाइस एंड दैट डिवाइस कुड बी Arduino Uno or it could be Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3. There are like different versions, but Raspberry Pi in general. और वहाँ पर आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं C++ में और Raspberry Pi स्पेसिफिक लैंग्वेज सपोर्ट करता है स्केच जो हम टेक्नोलॉजी स्टैक वाले सेक्शन में जाके डिस्कस करेंगे तो आप जो है वहाँ पर प्रोग्राम करते हो कि यार उस डाटा को टैकल कैसे करना है उस डाटा को मीनिंग कैसे देनी है उस डाटा को प्रोसेस कैसे करना है कौन सा कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल यूज करना है टू ट्रांसमिट डाटा टू द आईओटी हब ये सारी चीजें जो है उसके लिए आप जैसे लाइक कोई एक सिंपल एपीआई जब बनाते हो मैं आपको एक एनालॉजी के थ्रू समझा रहा हूँ तो इट विल बी easier for you guys to understand कि आप जब किसी API पे काम करते हो फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे काम करते हो राइट अब आप एक फॉर्म बनाते हो सिंपल सा उससे डेटा आप रिसीव करते हो तो यू अप्लाई सम लॉजिक्स टू इट कि भाई ईमेल वैलिड होना चाहिए या अगर मोबाइल नंबर दिया है तो इट हैज टू बी न्यूमेरिक उसमें अल्फाबेट्स अगर होंगे तो आप एरर आउट कर दोगे यूजर को या इसी तरह से सर्वर साइड पर अगर आप जो है वो कोई डाटा रिटर्न कर रहे हो तो आपने यूजर की जीपीएस भी एक सेंसर है उसके थ्रू अगर उसके लेट लॉन्ग उठाए तो आपने बोला मुझे 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर डाटा देना है तो आप कोड में लॉजिक लिखते हो कि यार एक सीक्वल क्वेरी लिखोगे पोस्टग्रेसक्यूएल में इलास्टिकसर्च से डाटा फैच कर रहे हो कि किस तरह मैं 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो मेरे
पास डाटा आ रहा है मैं सिर्फ वो उठा के रिटर्न करूं, तो उसके लिए आप डॉटनेट पे, पाइथन पे, पीएचपी पे, पर्ल पे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, जावा पे कोड करते हो, राइट? तो आप यहाँ पर भी आर्डिनो बोर्ड्स में और आप रास्पबेरी पाई में कोड करते हो। सेंसर से जो डाटा आता है वो इनपुट है, उसको आपने किस तरह से प्रोसेस करना है, और फिर आउटपुट है एक आपका कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल। वो एमक्यूटीटी हो सकता है, वो एचटीटीपी हो सकता है, कोलैब हो सकता है, देयर आर फ्यू अदर प्रोटोकॉल्स एज वेल। उनके थ्रू आप डाटा ट्रांसमिट करते हो टू सर्वर, ठीक है ना? तो वो डिवाइसेस में वो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं कि सेंसर्स और डिवाइसेस की। फर्स्ट, लाइक व्हाट sensors or devices do in general, they collect data from environment. This data could be as simple as temperature reading or as complex as full video feeds. हमने इन दोनों यूज केसेस की बात की कि टेम्परेचर रीडिंग के सेंसर्स भी हैं, और देन हमारे पास लाइक वीडियो फीड्स के सेंसर्स भी हैं। अगर किंग कैमरास लगे हुए वीडियो स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, वो हम बैक एंड पे भेज रहे हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, दैट कुड ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ IoT. Then we use sensors devices because multiple sensors can be bundled together or sensors can be part of a device. तो बेसिकली यहाँ पर सेंसर्स और डिवाइस में आपने एक फर्क समझना जरूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या है कि डिवाइस में मिनी कंप्यूटर है, और वी कॉल इट माइक्रो कंट्रोलर। आर्डिनो इस माइक्रो कंट्रोलर, रास्पबेरी पाई इस मिनी कंप्यूटर। तो वो एक इंटीग्रेटेड चिप है, एक आईसी है, जिसमें बाकायदा प्रोसेसर भी है, रैम भी है। उसमें आप ईथरनेट केबल भी डिटेक्ट कर सकते हो, उसको पावर भी दे सकते हो, पावर केबल के थ्रू आप उसमें लाइक वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो एक जो एंड कंज्यूमर है, जो जनरल पब्लिक है, लाइक ऑब्वियसली उनके लिए नहीं है। वो थोड़े से टेक सेवी टेक्निकल डेवलपर्स के लिए वो मिनी कंप्यूटर है, जिसके थ्रू आप प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हो। बट आप उसमें एलईडीज भी कनेक्ट कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं, वी विल डिस्कस। बट जो डिवाइस है वो ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है, वो मेन आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि ऑर्केस्ट्रेट करता है लॉजिक्स को, और सेंसर्स जो हैं वो इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप में आप कहते हैं कि यार आपने पढ़ा होगा 9 मैट्रिक में, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट? तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अब कंसीडर कीबोर्ड एज अ सेंसर, राइट? ऑल्दो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सेंसर, बट इट्स अभी आप समझने के लिए कंसीडर इट एज अ सेंसर कि आपने ए दबाया तो वो ए आपके पास चला गया। तो लैपटॉप एक आपकी डिवाइस है, या मोबाइल आपकी डिवाइस है, तो जो आप टाइप कर रहे हो वो सेंसर है, वो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली आपका माउस जो है वो इनपुट दे रहा है, आपको एलसीडी पे आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से सेंसर एक इनपुट डिवाइस है। जो डिवाइस इटसेल्फ है, जो रास्पबेरी पाई, आर्डिनो है, ये आपका कंप्यूटर है, और फिर आप इस डाटा स्ट्रीम्स को बैकएंड सर्वर पे भेजते हो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि सेंसर्स का काम डाटा कैप्चर करना है, डिवाइसेस का काम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके उस डाटा को टेम्पलेटेड फॉर्मेट में थ्रू सम स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल डाटा ट्रांसमिट करना है टू द बैकएंड। And there are like different type of sensors. यहाँ पर उनकी बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल योर फोन इज अ डिवाइस, ठीक है? मैं उसी एनालॉजी की यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ। दैट इज मल्टीपल सेंसर्स, कैमरा, एक्सेलरोमीटर, जीपीएस, दीज आर ऑल सेंसर्स, राइट? बट योर फोन इज नॉट जस्ट अ सेंसर, सिंस इट कैन ऑल्सो परफॉर्म मेनी एक्शंस। तो आप इसको सिर्फ सेंसर नहीं बोलते हो, आप इसको हाँ एक डिवाइस की कैटेगरी में जरूर आप रख सकते हो उसको। तो सेंसर्स और डिवाइसेस में फर्क है, मैंने इन दोनों को मिला के डिस्कस किया है। तो क्योंकि दीज आर हार्डली लिंक्ड, लाइक कपल, हाईली कपल्ड, तो मैंने इन दोनों को मिला के यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन कि ये बेसिकली किस तरह से है। तो अब आप अगर इस स्क्रीन पे देखोगे, जो सेंटर बोर्ड है जो आपको नजर आ रहा है, मेड इन इटली, ये ब्लू कलर का इंटीग्रेटेड चिप, बेसिकली ये आपके पास एक आर्डिनो यूनो बोर्ड है। तो आर्डिनो बोर्ड यूनो इज द सिंपलेस्ट बोर्ड दैट आर्डिनो कंपनी ऑफर्स, और इसके थ्रू भी आप स्टिल बहुत टाइप की प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने बना सकते हैं। और आप इसके जो सराउंडिंग्स में देख रहे हो, डिफरेंट एड ऑन्स हैं, ये डिफरेंट केबल्स हैं, डिफरेंट सेंसर्स हैं। तो ये जो पर्पल वाला है ये एक तरह का सेंसर है, ये ब्लू वाला एक अलग टाइप का सेंसर है। तो मे बी जैसे कोई एक इसमें मॉइस्चर डिटेक्शन का हमारे पास जो है वो सेंसर है, कोई टेम्परेचर डिटेक्शन का सेंसर है, कोई हमारे पास जो है वो सेंसर है मे बी लाइक थर्मल हीट डिटेक्शन का सेंसर है। तो सेंसर भी मे बी एक चिप है, लेकिन वो उसमें डिफरेंट टाइप की एक कैपेबिलिटी होती है। किसी सेंसर में माइक्रोफोन होगा, वो वॉइस डिटेक्ट करता है, किसी सेंसर्स में कैमरा इंस्टॉल्ड होगा, वो वीडियो स्ट्रीम्स इनपुट लेता है, किसी सेंसर्स में थर्मामीटर साथ लिंक्ड होगा जो कि टेम्परेचर कैलकुलेट करता है और इनपुट देता है। आप उसके बाद वायर्स के थ्रू इन सेंसर्स को, तो
इस मिनी कंप्यूटर के साथ, जो कि इसको हम माइक्रो कंट्रोलर कह सकते कहते हैं बेसिकली, तो इसके थ्रू आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो और इनपुट दे सकते हो, और उसके बाद जो है वो आप इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स से आपने इसमें यूएसबी केबल के थ्रू आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे आर्डिनो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आर्डिनो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो आप अपने पास इंस्टॉल करोगे मे बी विंडोज लैपटॉप पे। आप उसमें बकायदा एक पूरा प्रोग्राम बनाओगे और यूएसबी केबल के थ्रू, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, यूएसबी केबल के थ्रू आप कनेक्ट करके इसमें वो प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे, और फिर जो आपके पास इनपुट ये सेंसर्स देंगे, आप ये वाईफाई से कनेक्टेड होगा या ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा या ये फिर सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा या फिर ये डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं उनसे कनेक्टेड होगा, और ये फिर डेटा प्रोसेस करने के बाद ट्रांसफर करेगा। तो इसमें प्रोसेसर भी होता है, इसमें रैम भी होती है, 4 MB रैम है, 8 MB रैम है। तो ये इसका सबसे सिंपल बोर्ड है आर्डिनो का। बट आर्डिनो के आप जाएंगे तो देयर आर डजन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल, और हर बोर्ड डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ बोर्ड्स आपको ईथरनेट केबल भी प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे कि आप हार्ड वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इस बोर्ड के साथ और फिर आप इंटरनेट चलाओ। कुछ में कोई वाईफाई कैपेबिलिटी देता है, कोई और कैपेबिलिटी देता है। इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो इनेबल होते जाते हैं जितने आप एडवांस बोर्ड के ऊपर जो है वो जाते हो। तो इट डिपेंड करता है ऑन योर प्रोजेक्ट नीड, कि आपकी प्रोजेक्ट की नीड क्या है, आप क्या बना रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो, कौन से सेंसर्स आपने यूज करने हैं, वो सेंसर्स किन आर्डिनो बोर्ड्स के साथ कंपैटिबल है, और फिर आप उनको उसके अकॉर्डिंगली अपना आर्डिनो बोर्ड जो है सिलेक्ट करते हो। इसी तरह से एक और टूल है जो यूज होता है, जो कि कॉम्पिटिटर है टू आर्डिनो यूनो, इस रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई इससे ज्यादा ऑफर करता है। जो आर्डिनो आर्डिनो इज सिंपल, सस्ता ज्यादा, बट ये है कि आपके पास जो रास्पबेरी पाई है बेसिकली वो आपको इससे ज्यादा ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ए, और वी जनरली कॉल इट अ मिनी कंप्यूटर, एंड आर्डिनो बोर्ड्स को वी कॉल इट माइक्रो कंट्रोलर्स। दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल जस्ट टू कंट्रोल डाटा एंड ऑर्केस्ट्रेट डाटा। इनपुट डाटा लो और बैकएंड पे ट्रांसमिट कर दो, सर्वर विल प्रोसेस द डाटा। बट इन रास्पबेरी पाई यू कैन ऑल्सो प्रोसेस डाटा टू सम डिग्री एंड कैन स्टोर इन द मेमोरी एज वेल। तो these are sensors and devices. The next is जी There is a question, which sensor data is most relevant for IoT? सारे के सारे डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस यूज केस, राइट। अब आप जो है वो, अभी मैंने यूज केस की बात की थी कुछ देर पहले, कि जितने भी क्रिकेट स्टेडियम्स, एंड दिस इज हाउ लाइक आईओटी इज शेपिंग द फ्यूचर, कि अब आप वहां पर आप जो है वो कोई मैनुअल काम नहीं कर रहे हो, वहां पे आपने मॉइस्चर डिटेक्शन के सेंसर्स लगाए हुए। अब लेट्स से दिस इज द मॉइस्चर डिटेक्शन सेंसर, राइट। आपने ये आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, या ये सेंसर ट्रांसमिट कर रहा है डेटा टू सेंट्रल हब which is Arduino board through maybe some means, that could be Wi-Fi or that could be any other tool. तो ये जो है डिटेक्ट कर रहा है आपका मॉइस्चर लेवल के मट्टी में कितनी नमी है, वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर रहा है। उसकी बेसिस पे ये मोटर ऑन कर देता है, जिससे स्प्लेंडर्स ऑन हो जाते हैं और वो पूरे ग्राउंड को पानी दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको अभी फिलहाल टेम्परेचर डिटेक्शन के सेंसर की जरूरत नहीं है। तो मगर एक और यूज केस है कि एक आपके पास लेट्स से आइसक्रीम की कोई फैक्ट्री है, वहां पे आइसक्रीम्स बन रही हैं, और वहां पर आपने एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आपने सारी स्टोरेज रूम है, वहां पर आपने आइसक्रीम्स रखी हुई, वहां पे आपने एक सर्टेन टेम्परेचर को मीट करना है। तो वहां पे आप एक आईओटी डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको मॉइस्चर डिटेक्शन के सेंसर का कोई काम नहीं है, वहां पर आप टेम्परेचर डिटेक्शन के सेंसर को यूज करोगे अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ, और एक कंटिन्यूस टेम्परेचर क्या है वो इनपुट लेके एक मोबाइल ऐप पे ट्रांसमिट करते रहोगे। तो जैसे ही किसी एबीसी रीजन की वजह से कोई रेफ्रिजरेटर काम करना छोड़ता है, टेम्परेचर नीचे जाता है, वो आइसक्रीम खराब हो सकती है और आपको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आप फौरन क्या करोगे, एक अलर्ट आ जाएगा मोबाइल पे के टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग डाउन, आप फौरन जाओगे, आप जाके कोई बैकअप रेफ्रिजरेटर है उधर का ऑन करोगे, या फिर आप इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर सकते हो थ्रू आर्डिनो बोर्ड्स के। आप जो है वो लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन ही ना हो, कि एज सून एज वो ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है कि कम हो रहा है, तो वो साथ ही साथ जो है वो जो बैकअप फॉल बैक प्लान है, या जो आपके पास बैकअप स्ट्रेटजी है, वो रेफ्रिजरेटर है, वो ऑन कर देता है। तो अब आपने ये दो डिफरेंट यूज केसेस देखे, इसमें हमने डिफरेंट सेंसर्स की नीड थी, और कुछ चीजें या प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं वहां पे मे बी आपको 2 या 3 टाइप के सेंसर्स चाहिए हो टू कंक्लूड अ रिजल्ट, कि मुझे ये काम करना है, टू डिसाइड द एक्शन आपने मे बी 2 से 3 टाइप का इनपुट डाटा चाहिए हो,
तो वहां पर आपके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि आप मल्टीपल सेंसर्स को कनेक्ट कर सके विद योर आर्डिनो बोर्ड टू ट्रांसमिट डाटा, और फिर उस सारे डाटा को आप कंसोलिडेट एक जगह करके उसके आउटपुट की बेसिस पे कोई डिसीजन ले व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। और वो जो नेक्स्ट स्टेप है ये आप अपने आर्डिनो प्रोग्राम्स के अंदर डिफाइन कर रहे होंगे, जो कि आप C++ में लिख के यूएसबी केबल के थ्रू अपनी इस इंटीग्रेटेड चिप में इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। There is another question, Zaryab. Do you want to say that, or should I just read it out? Yeah, it's perfectly okay. Okay, I'll ask it. Adeel bhai, there's just one question for starter projects, मतलब बंदा बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच शुरू कर रहा हो और कोई बहुत मेजर उसके पास बैकग्राउंड ना हो, तो फॉर दैट विल दिस UNO board will be better or Pi in terms of language as well? One, and part B, sorry, just a small part, that either of these projects are by default supporting Wi-Fi connectivity या हमें उसकी कोई functionality फिर कोड इन करनी पड़ती है? बिल्कुल, I will answer both of them. So Arduino boards are more simpler as compared to Raspberry Pi. So Raspberry Pi is a mini computer. It has a lot more things. So maybe for your production grade applications you may need Raspberry Pi, but for अगर आप लर्न कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक अभी आप स्टेज पर हैं, तो आई विल रिकमेंड यू Arduino Uno boards, and Arduino Uno is the simplest board Arduino company offers. तो आप सबसे पहले तो ये बोर्ड आप Amazon से मे बी आप ऑर्डर कर लें, आपको 4-5 हज़ार रुपए का ये बोर्ड मिल जाएगा। इसके साथ आपने सेंसर्स अलग से ऑर्डर करना पड़ेंगे। अब आप पहले तो कोई यूज केस बना लें, आपने बोला लेट से मुझे अपने घर में गार्डन में पानी देना है, और उस पानी को देने के लिए मैंने क्या करना है, मेरे घर पे एक पानी की मोटर है, मैं वहां पे एक पाइप लेकर आता हूँ, उससे लगा के वो मैं गार्डन में मेन छोड़ देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मॉइस्चर डिटेक्शन का मैं जो है वो सेंसर लेकर आता हूँ, और वो मैं सेंसर लाके जो है ना वहां पे अपनी गार्डन के अंदर मिट्टी के अंदर वो इंस्टॉल होता है। आपने वो कर दिया, जो कि मॉइस्चर लेवल को डिटेक्ट करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा दिस इंफॉर्मेशन टू योर आर्डिनो बोर्ड कि भाई अभी जमीन बिल्कुल खुश्क है, पानी देने की जरूरत है। आर्डिनो बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जैसे बटन ऑन करते हैं, ऐसे आप उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के थ्रू कनेक्ट करोगे कि वो फिर इंस्ट्रक्शन देगा कि यार यहाँ पे करंट पास करो, और वहां पर आपका जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगी और पानी आने लग जाएगा। और जैसे ही आपका, क्योंकि मॉइस्चर तो वहां पे लगा हुआ है, जो मॉइस्चर सेंसर है, तो एज सून एज आपकी जमीन को इनफ मॉइस्चर इनफ पानी मिल जाएगा, तो वो अगेन एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ग्रीन के भाई अब जो है वो काफी पानी मिल चुका है जमीन को। तो उस वक्त ही आप क्या करोगे, दोबारा से एक इंस्ट्रक्शन इशू करोगे टू योर मोटर, और वो ऑटोमेटिकली दोबारा बंद हो जाएगी। तो ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है। और लेट से आप एक हफ्ते महीने की छुट्टियों पे घर से बाहर चले गए और आपने ये सारी चीजें लाइक प्रोवाइड की हुई है, तो एज लॉन्ग एज के इलेक्ट्रिक की लाइट नहीं जाती है, आपका ये काम करेगा, एंड टू एंड काम करेगा। तो इस तरह से Arduino बोर्ड इज रिलेटिवली सिंपल। तो बेस्ड ऑन योर यूटिलिटी आपने एक सेंसर ऑर्डर करना होगा, आपने कौन सा चाह रहे हैं। आई विल प्रेफर, आई विल एडवाइस कि आप किसी एक यूज केस के साथ स्टार्ट करें, एक सेंसर ऑर्डर करें, एक Arduino बोर्ड ऑर्डर करें, ये आपको सब मिला के कोई 6,000 6,500 कॉस्ट करेगा। आप मंगा के फिर आपकी जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टूल्स हैं, ये सब फ्री हैं, तो लाइक आप अपने विंडोज लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं तो डाल के कर सकते हैं। देयर आर लाइक डजन्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल, जिनको आप फॉलो करते हुए ये जो मैंने पूरी आपको एक यूज केस बताया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद इन लाइक 4-5 डेज। सही सही। और इसके अंदर अगर लेट्स से कि मैं कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करता हूँ व्हिच इज वाईफाई बेस्ड, तो उसकी भी तो बेसिकली क्या होता है आर्डिनो बोर्ड्स में, जब आप इसका IDE कॉन्फ़िगर करते हैं अपने पास, तो वहां पर जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स इनेबल करना पड़ते हैं। तो वहां पे वाईफाई का एक मॉड्यूल है, ब्लूटूथ का एक मॉड्यूल है, तो आप वो मॉड्यूल्स आप इनेबल करते हैं और उनकी कनेक्शन डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब आप प्रोग्राम पूरा कोड कर लेते हैं कि आपको इनपुट मिलेगा मॉइस्चर लेवल किस फॉर्मेट में मिलेगा, उस पर आप क्या लॉजिक लेंगे, किस नंबर को आप कंसीडर करेंगे कि इनफ वाटर जा चुका है और अब मोटर स्विच ऑफ करनी है, वो पूरी लॉजिक आप कोड करेंगे। उसके बाद आप एक USB केबल कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से निकाल के इस आर्डिनो बोर्ड के साथ, और वहीं पे वो IDE के अंदर जो आर्डिनो का IDE है उधर ही वो आपको डिटेक्ट करके बोलेगा कि यार आप डू यू वांट टू मेक अ डिप्लॉयमेंट, आप बोलोगे यस आई वांट टू मेक अ डिप्लॉयमेंट, वहां से वो कोड उठा के आपका आर्डिनो बोर्ड में डाल देगा और उसके बाद आप जो है वो इसको
अपने घर पे कहीं पर भी डाल के यूज कर सकते हो। और आर्डिनो बोर्ड में भी दो चीज होती है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर भी आपने देना होती है, तो इसके दो पॉसिबल यूज केसेस होते हैं। आप इसको बैटरी के थ्रू, क्योंकि अगेन ये इतने लाइट वेट होते हैं, आप जैसे जो बड़ी वाली बैटरीज मिलती हैं, सेल्स होते हैं, उसके थ्रू आप कनेक्ट करके इसको इनपुट दे सकते हो पावर की, वो आपके पास महीनों चलेंगे, महीनों बाद आप लाइक बैटरी रिप्लेस कर दो और फिर वो महीनों चलेंगे। या फिर आप इसको अगर फिक्स्ड कर रहे हो कहीं, तो आप इसको लाइक इलेक्ट्रिक के थ्रू भी, इनकी वायर्स आते हैं जिसके थ्रू आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक लाइक मिनी कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था, जैसे उसमें सारी पोर्ट्स होती हैं, इसमें भी पोर्ट्स होती है, लेकिन इसके सबसे बेसिक वर्जन में बहुत कम पोर्ट्स होती हैं। जितने एडवांस वर्जन में जाओगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन ग्रेड पे ऑब्वियसली आपके यूज केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, तो यू नीड अलॉट मोर पोर्ट्स। बट डिपेंड करता है आपकी यूज केसेस पे। लाइक HDMI पोर्ट आपको आर्डिनो के रिलेटिवली एडवांस वर्जन में मिलती है। तो आपको आर्डिनो, अगर HDMI पोर्ट का कोई काम है, लाइक आपने एक, आप अपने नॉर्मल LED टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रास्पबेरी पाई। और यही हुआ हुआ था यूजुअली, लाइक LG वगैरह कोई भी टीवी वगैरह बाय कर लो, तो वो रास्पबेरी पाई या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को लेवरेज कर रहे होते हैं, और वो आपके लाइक नॉर्मल टीवीज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मार्ट टीवीज। तो आप जाओगे स्मार्ट टीवी सेम साइज के, और नॉर्मल टीवी की प्राइस में 20-30 हज़ार रुपए का फर्क होता है। वो फर्क ये होता है कि 5-10 हज़ार रुपए या आर्डिनो बोर्ड्स वगैरह और इन सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन में लगते हैं। तो आप अगर ये खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, तो आप जो है वो अपने कन्वेंशनल टीवी को, LED को आप स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रास्पबेरी पाई और आर्डिनो बोर्ड में भी। तो आपको उसके लिए HDMI पोर्ट वाला आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, जिसको आप कनेक्ट करोगे विद योर टीवी, और उसके बाद फिर आप जो है वो उसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सही सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। आपने अब वंस डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने सेंसर से ये समझ लिया सेंसर्स और डिवाइसेस क्या कर रहे हैं। सेंसर्स और डिवाइसेस में भी दो स्टेप है। सेंसर्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं एज एन इनपुट टू डिवाइसेस। डिवाइसेस कुड बी रास्पबेरी पाई और आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद आपने ये डाटा रेडी हो गया, तो अब आपने ये सर्वर पे भेजना है, राइट, IoT हब पे भेजना है। तो यू कैन बिल्ड योर ओन कस्टम IoT हब एज वेल यूजिंग MQTT प्रोटोकॉल। यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन MQTT ब्रोकर, जो कि IoT हब होता है, जिसमें आप सारा डाटा भेजते हो, और फिर जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं, कंज्यूमर एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब्सक्राइब होती हैं डिफरेंट डाटा के लिए, और वो वहां से डाटा रीड करके उसको एप्लीकेशन के अंदर दिखा रहे होते हैं। या फिर आप जो है वो Azure IoT हब है या AWS IoT हब है, दीज आर IoT हब एज अ सर्विस। ये Azure और IoT प्रोवाइड करते हैं, दीज आर एक्सीलेंट टूल्स, आप इनको यूज कर सकते हो। तो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस काफी स्पीड अप हो जाता है। अगर लाइक मेरे पास एक कमर्शियल IoT का प्रोजेक्ट आया और मैंने उस पर काम करना है, तो व्हाट आई विल डू इज लाइक, मैं पूरा हब कस्टम सेटअप नहीं करूंगा, आई विल यूज ईदर Azure IoT हब और AWS IoT हब, क्योंकि उसमें पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ था डिवाइस रजिस्ट्रेशंस का, कि मैंने 4 आर्डिनो बोर्ड्स लिए, तो 4 आर्डिनो बोर्ड्स मैंने किसी हार्डवेयर डिवाइस के साथ लिंक करके एक प्रोडक्ट बना ली अपनी, और मैं उसको कोई भी नाम दे रहा हूँ स्मार्ट लॉक्स। आप अपने घर पे लगा लें, और विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस आप अपने गेट को लॉक अनलॉक करें, ठीक है ना, जो लाइक वैसे भी घरों पे लगे हुए होते हैं, लेकिन वो बटन से चल रहे होते हैं, वो सेंसर्स पे नहीं चल रहे होते। तो आपने क्या किया, मैंने वो स्मार्ट लॉक्स बना लिए, अब मैंने वो 5 डिवाइसेस अपनी जाके IoT हब पर रजिस्टर करनी है। तो अगर आप कस्टम IoT हब बनाएंगे, तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दोस फीचर्स व्हिच विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप जाते हैं विद Azure IoT हब, और आप जाते हैं विद AWS IoT हब, they will provide you all of those features out of the box. आप अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं इक्विपमेंट्स की, कहीं से असेंबली करते हैं, असेंबल करते हैं, उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं आप आर्डिनो बोर्ड्स टू मेक इट स्मार्ट। उसके बाद आप वो प्रोडक्ट अपनी रिटेल मार्केट में रोल आउट करते हैं, और आप वो डिवाइस जो रोल आउट करते हैं आप अपने IoT हब पर रजिस्टर भी कर लेते हैं। तो जैसे ही कोई अपने पास या अपने घर में वो डिवाइस इंस्टॉल करता है, फर्स्ट दे रजिस्टर इट विद द IoT हब, और उसके बाद दे स्टार्ट यूजिंग इट। तो अब IoT हब बैकएंड है, और सेंसर्स और डिवाइसेस आपके क्लाइंट एंड पे हैं, डिवाइस के साथ अटैच्ड हैं या उसके नियर बाय लोकेशन पे हैं, जो कि वहां से डाटा कलेक्ट करके भेज रहे हैं। अब बीच में कनेक्टिविटी आ जाती है कि IoT हब से जो वो आपके आर्डिनो बोर्ड से या रास्पबेरी पाई से जहाँ पे डाटा कंसोलिडेट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स, वो आप सर्वर पे कैसे भेज रहे हो या IoT हब पे कैसे भेज रहे हो। तो वहां पे कनेक्टिविटी में हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल आ जाते हैं। द सेंसर्स डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द क्लाउड through a variety of methods including cellular, जो मोबाइल फोन्स में आपके पास लाइक इंटरनेट होते हैं, सैटेलाइट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। देयर आर लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क्स, LPWAN is another protocol through which you can transfer data, connecting via gateway or router or connecting directly to the internet via ethernet. तो ये सारे possible options हैं connectivity establish करने के, as I told you
कि जैसे लैपटॉप्स में आपके पास ईथरनेट केबल्स होती है, इसी तरह एडवांस वर्जन्स के जो एड्रीनो बोर्ड्स या रास्पबेरी पाई बोर्ड्स होते हैं, रास्पबेरी पाई बोर्ड्स भी बाय द वे बड़े सिमिलर होते हैं टू एड्रीनो पोर्ट्स। तो वहां पे आप क्या करोगे कि उसमें इथरनेट पोर्ट होती है, अगर आपने कोई चीज फिक्स लोकेशन पे कहीं लगानी है तो आप इंजेक्ट कर सकते हो वहां पे। जैसे आप सब डिफरेंट कंपनीज में या यूनिवर्सिटीज में आपने बायोमेट्रिक लॉगिन्स देखे होंगे, राइट? तो कहीं पर भी आप आते हो, कंपनी में एंटर होती हो, तो बायोमेट्रिक आप पहले करते हो। वो बेसिक बड़ी सिंपल सा वो जो बायोमेट्रिक डिटेक्शन की डिवाइस है, वो एक सेंसर है जो आपके फिंगरप्रिंट्स इनपुट ले रहा होता है, वो ट्रांसमिट करता है बैक एंड पे आर्डिनो बोर्ड पे, और आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट होता है आपके एक लोकल डेटाबेस के साथ, या आप वहां पे ही एक लोकल स्टोरेज बना देते हैं जो कि लिमिटेड होता है टू कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एट मैक्स। जनरली लाइक किसी यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में इतने ही लोग होते हैं, तो वहां पे उनके वो थंब एक्सप्रेशंस को मैच करता है। अगर मैच होता है तो एक फिजिकल इक्विपमेंट होता है, डोर का जो लॉक होता है उसको लॉक या अनलॉक वो करता है, अगर फिंगर एक्सप्रेशंस मैच होते हैं तो अगेन ये सारा काम जो है वो आप कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करो, तो कनेक्टिविटी दो लेवल्स पे स्टैब्लिश हो रही होती है। एक फ्रॉम सेंसर टू योर पोर्ट और डिवाइस, और फ्रॉम डिवाइस टू क्लाउड। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो सेंसर्स कनेक्ट होते हैं वो वायर्ड होते हैं विद आर्डिनो बोर्ड्स और आपके रास्पबेरी पाई, बट वहां से जो डेटा ट्रांसमिट होता है सर्वर पे वो रिमोट इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है, सेलुलर, सैटेलाइट, वाईफाई, ब्लूटूथ। और इन हर एक कनेक्शन प्रोटोकॉल के अपनी लिमिटेशंस हैं, लाइक वाईफाई की रेंज ज्यादा है, ब्लूटूथ की रेंज थोड़ी कम है। अगर आपने बहुत दूर डेटा रखा हुआ है, आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल फोन को अपनी स्मार्ट डिवाइस अप्लायंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो एक पॉइंट से आगे वो कनेक्ट नहीं होगा, तो आपने सेम वाईफाई पे कनेक्ट होना जरूरी है। तो अगर आप इसी तरह से लाइक अलग अलग ऑप्शंस हैं, या आप ईथरनेट केबल पे जाना चाह रहे हो ताकि फास्ट डाटा ट्रांसमिशन हो, जहां पर बड़े लाइक डिवाइसेस होती हैं और फास्ट डाटा ट्रांसमिशन नीडेड होता है, वहां पे एट टाइम्स कंपनीज ईथरनेट केबल्स भी यूज कर रहे होते हैं। तो इट्स बेस्ड ऑन योर नीड, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो टू ट्रांसमिट डाटा, और MQTT इज अनदर प्रोटोकॉल। तो आप इनमें से कोई एक जो है वो यूज कर रहे होते हैं टू सेंड डाटा। यहाँ पे हमने उसी ट्रेड ऑफ की बात की हुई है। ईच ऑप्शन हैज ट्रेड ऑफ बिटवीन पावर कंजम्पशन, रेंज एंड बैंडविड्थ। चूजिंग विच कनेक्टिविटी ऑप्शन इज बेस्ट कम्स डाउन टू द स्पेसिफिक IoT application. But they will accomplish the same task, getting data to the cloud. So in a nutshell, हमने यहाँ पे ये बात की कि सारे प्रोटोकॉल्स in a nutshell data transmit कर रहे होते हैं from your smart device to cloud और IoT hub, but प्रोटोकॉल डिफरेंट है और हर प्रोटोकॉल के अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। तो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट नीड्स यू कैन डिसाइड विच इज द राइट प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू और यू शुड फॉलो। जैसे कुछ केसेस में और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इफ दे आर बिल्डिंग सम IoT बेस्ड प्रोजेक्ट दे मे यूज सैटेलाइट्स, ठीक है ना, उनके लिए वो ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिव है, और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स उनके थ्रू आ सकते हैं वो रिमोट लोकेशंस पे। उनके लिए इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोवाइड ब्लूटूथ, राइट? सो कुछ प्रोजेक्ट्स की नीड ऐसे होती है, वहां पर आप कोई और मेथड पे जा ही नहीं सकते, वहां पे कोई एक ही ऑप्शन होता है जो आप यूज कर सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दोनों वायबल होते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या ऑप्शन जो है वो यूज करना चाह रहे हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट डेटा प्रोसेसिंग। वंस अब हमने दो स्टेप में बात की, एक में डेटा कैप्चर की बात की, सेकंड स्टेप में हमने बात की कि हाउ वी कैन ट्रांसमिट और रिले दैट डेटा फ्रॉम स्मार्ट डिवाइस टू द सर्वर। अब हम थर्ड स्टेप में बात करें, लेट्स से डेटा पहुंच गया सर्वर पे और कंटिन्यूस पहुंचे जा रहा है, वो डेटा स्ट्रीम्स हैं, वो वीडियोस बन रही हैं और वो डेटा स्ट्रीम्स जा रही हैं, या वो टेलीमेट्रिक डेटा है कि एक मशीन ऑयल एक्सट्रैक्शन की जो है वो जो यूनिट्स हैं या कार असेंबली के यूनिट्स हैं, ये एट टाइम्स 24/7 कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, एट टाइम्स 16 आवर्स कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। तो सेंसर्स लगे हुए, वो 16 आवर्स कंटिन्यूस डेटा प्रोड्यूस करता रहता है। तो वो एक सिंपल डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला डेटा नहीं होता। इट विल बी डिफिकल्ट कि आप HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो डेटा भेज रहे हो, वो क्योंकि लाइक वो स्ट्रीम्स नहीं भेज रहा। तो यू नीड टू फिगर आउट डिफरेंट वेज। अपाची स्पार्क आप यूज करते हो कुछ प्रोजेक्ट्स में, काफका आप कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे होते हो क्योंकि काफका इज गुड विद डेटा स्ट्रीम्स, आप उनको टैकल कर रहे होते हो। तो देयर आर लाइक डिफरेंट बंच ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज, बट वो डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स हैं, आप उनको प्रोसेस करके किस तरह से आगे जो है वो लेके जा रहे हो। तो हम यहाँ पर उन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वंस डेटा गेट टू द क्लाउड, सॉफ्टवेयर performs some kind of processing on it. This could be very simple, such as checking that the temperature reading is within an acceptable range or not, or it could be very complex, like such as using computer vision maybe, or a video to identify objects such as intruders on a property. तो ये भी एक यूज केस है कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई है, आप अपना कस्टमाइज जो आपका सुपरवाइज्ड
डाटा होता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो टू योर बैक एंड कि यार ये 10-12 लोग हैं, ये इस प्रॉपर्टी में एंटर हो सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई भी आता है तो एटलीस्ट सेंड मी अ नोटिफिकेशन कि कोई इंट्रूडर, कोई अननोन, कोई हमारे लोकेशन के अंदर जो है वो एंटर हुआ. तो दीज आर ऑल डिफरेंट केसेस ऑफ एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ IoT. So there are some very simple use cases, there are some very complex use cases where you need to blend IoT with machine learning, where you need to blend IoT with computer vision. So obviously, like based on the complexity of your project, you need to blend all of these different technologies in order to provide right user experience. तो अब आप जब डाटा प्रोसेसिंग में हम जा रहे हैं तो हम डाटा कलेक्ट कैसे कर रहे हैं. सर्वर पे हमने बात कर ली, अपाची स्पार्क इज वन ऑप्शन, काफका इज वन ऑप्शन बिकॉज दीज आर गुड विद डाटा स्ट्रीम्स. बट प्रोसेसिंग जो आपने करनी है उसके ऊपर टू कन्वर्ट दैट इनटू अ टेम्पलेटेड फॉर्मेट में भी जैसे हम ETLs पे काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. तो एट टाइम अगर आपके पास डिफरेंट सेंसर से डाटा आ रहा है, यू वांट टू स्टोर इन अ टेम्पलेटेड फॉर्मेट रादर देन लाइक जैसे आ रहा है वैसे ही स्टोर कर लें. तो यू वांट टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ मच बेटर वे. अगर तीन सेंसर्स एक ही फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा दे रहे हैं तो हाउ यू विल मैप दैट डाटा इन योर डाटा स्टोरेज लेयर कि यू नो कि ये इसी एक ऑब्जेक्ट से, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चार डिफरेंट सेंसर्स हैं. स्मार्ट कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है राइट, उसमें 8 डिफरेंट सेंसर्स इंस्टॉल हुए हैं. तो 8 सेंसर जो डाटा दे रहे हैं बट वो एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा है. तो आप बैकएंड पे इसी तरह से स्टोर करना चाहोगे कि वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड स्टोर हो रहा हो, ताकि आपने जब उस पर रिपोर्ट्स रन करनी हो या कोरिलेशन के अंदर डाटा को देखना हो तो आप ज्यादा मीनिंगफुल डिसीजंस जो है वो ले सको. So these are some of the different use cases of or consideration that generally you consider while working with data processing. उसके बाद हम इसके फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक पे आते हैं विच इज़ डेटा विजुअलाइजेशन और यूज़र इंटरफेस. ऑब्वियसली जब आपके पास इतना ज़्यादा तादाद में डाटा आता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न आउट ऑफ इट. So you need some user-friendly user interfaces. You need some data visualization tools कि जिसके थ्रू आपको इंटेलिजेंस और इंसाइट्स मिले. और जिसकी मैंने एक एग्जांपल की बात अपने बिल्कुल शुरू में की थी कि अगर एक स्मार्ट हाउस है और मेरे पास मैंने उसको गूगल डिजिटल असिस्टेंट के साथ लिंक किया हुआ है और मैं इंस्ट्रक्शंस जो है वो ट्रांसफर करता हूँ, इंस्ट्रक्शंस देता हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस. शाम को रोज कोई एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन देता हूँ. रोज रात में आई जनरली प्रेफर कि मैं अपने एयर कंडीशन को लाइक 24 पे सेट करके रखूं. तो ये डिफरेंट बिहेवियर हैं एक यूजर के और ये वेरी करते हैं फ्रॉम वन यूजर टू अनदर. लाइक ऑब्वियसली कोई 16 खोलते ही 16 कर देता है कि नहीं यार बस इतना ही रखना है. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम वन यूजर टू दी अदर. तो आप फिर वहां पे डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द पैटर्न्स एंड देन यू कैन यूज सम डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स मे बी टैब्लो to display that data in a consumer friendly manner ताकि जो एंड यूजर है वो कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट करे आउट ऑफ इट और कोई डिसीजन ले सके. और हमने इस डाटा को और बेहतर एप्लीकेशंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन इज मेड यूजफुल टू द एंड यूजर इन सम वे. We need to make that information useful, right? Otherwise, there is no point implementing this technology. This could be via an alert to the user. आप email, text notification भेज सकते हो to your users. Example, a text alert when the temperature is too high in the company's cold storage. Like we have already discussed this use case. If the cold storage temperature is like too high, कि वहाँ पे चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, then you can notify your manager or you can implement that business logic on the back end. तो आप जो यूजर इंटरफेस है वो या डाटा विजुअलाइजेशन कैसे होनी चाहिए या उस डाटा का बेस्ट एप्लीकेशन और बेस्ट यूज क्या है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो. आप टैब्लो भी यूज कर सकते हो. वहाँ से आप यूजर इंटरफेस के थ्रू इन एन इंट्यूटिव मैनर आप इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हो. एनालिटिक्स के लिए यूज होता है जनरली लाइक to Tableau is a data visualization tool, right? तो आप analytics के ऊपर apply करते हो. And analytics primarily deal with extraction of meaningful information with big data. So if there is a lot of data, unstructured data, you can apply different set of technologies and then you can extract meaningful data out of it. And then you can make that data available.
Okay, so that's data visualization and like user interfaces. Now I will talk about the architecture of this application. Now consider this is three layered architecture. और हमने अभी इन्हीं तीनों के बारे में बात की है. वन इज लाइक डाटा कलेक्शन, एक IoT डिवाइस है, और ये एक सेंसर है, ये डाटा ट्रांसमिट कर रहा है. ये भी एक IoT डिवाइस है, बट ये एक एंटीना है जो सिग्नल कैच कर रहा है और डाटा ट्रांसफर कर रहा है, तो ये भी एक IoT डिवाइस है. देन वी हैव अ माइक्रो कंट्रोलर विच इज कुड बी योर एड्रीनो बोर्ड, IoT डिवाइस है जो कि डाटा ट्रांसमिट कर रहा है टू IoT हब और IoT गेटवे. और ये IoT हब आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करते हैं एज्योर और AWS. अगर आप लाइक पहली दफा कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड टू गो विद एज्योर IoT or like AWS IoT, because they will provide you all the standard features out of the box. You just need to configure it right, so it will be far easier. And then Azure automatically provides you some analytical tools as well that you can link with your IoT hub, and you can extract meaningful data out of it. So it will be relatively easy for you to implement this architecture. We have implemented this end-to-end complete architecture in like 5 different countries. एक ही कंपनी के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड उनका जो है वो बिजनेस है. एंड वी इम्प्लीमेंटेड ऑल दिस लाइक देयर आर dozens of different IoT devices sending telemetric data to the IoT hub, and IoT hub has its own database जो Azure out of the box provide करता है. It consolidates all the data, and then we can do analysis on top of it, and Azure provide tool for that analysis as well. And we can also build some custom applications and can read data from IoT hub and make that available to our end user. So this is how this 3-tiered architecture work like in real world. So guys, यहाँ तक if you have any questions, क्योंकि हमने एक और major section जो है वो complete कर ली है. So if you have any questions, let me know. उसके बाद I will move to the technology stack. We have just discussed all the building blocks of major building blocks of IoT. आप किसी भी IoT project पे काम करो, if you have clarity on these 4 things, you can work on any IoT project without any issues. Adeel, we're just like it's 5:37, so just like letting you know we are ठीक है, since there are, so अगर कोई और किसी का question नहीं है तो technology stack पे अगर मैं जाऊँ तो from embeddable programming perspective, which is another category, managed logics on the like client side, we can go with Arduino, Uno, Raspberry Pi. और again ये उस perspective से बात करूँ, if you want to work in this space, now आपको basic building blocks पता है. I will talk about some of the tools that you need to learn in order to work in these different building blocks, right? Or deliver end-to-end IoT-based project. So you need to work with Arduino Uno or Raspberry Pi. Both will provide compatibility with C and C++ programming languages. Raspberry Pi will provide you compatibility with more languages, with JavaScript as well, with Python as well. So Raspberry Pi provides you more flexibility. On the other hand, Arduino is lightweight. Arduino is good, but Arduino provides you capability to code on Sketch and C and C++. So these are 2 technologies. अगर आपने obviously like आप beginner को start करो, you are not supposed to work on both of them. You can start with one Arduino Uno. And when it comes to protocol, data transmission protocol, MQTT is a lightweight data transmission protocol that you can use to transmit data from IoT devices to the backend. Then we have Bluetooth, Wi-Fi, HTTP, other protocols. You are all aware of it, so I won't go in details. As far as the processing is concerned, you can use cloud computing, AWS, Azure, GCP. All 3 are compatible with IoT-based projects. You can use Hadoop for big data processing. You can use Tableau for data visualization. So if you can work with like all of these tools, or at least you can start reading about all of these tools and start implementing them one by one, you can eventually in like 4 or 5 months you will be able to work on independently on any of these like IoT based project. Or at times developers are specific to one area only. I talked about 4 different building blocks, right? So at times companies hire कर रही होती हैं developers or engineers for one building block. Engineers specialized in coding Arduino Uno boards, right? Then company needs someone who can work with data visualization tool like Tableau. You can hire specialized engineers who can work with Hadoop or cloud computing DevOps engineers. So obviously there are different kind of technologies that you should know all the roles, but you just need to work with like even if you can work with one, you could have a good job.
अच्छा, टेक्नोलॉजी स्टैक में मैं ये वाली एक पिक्चर थी जो मैंने ये समझाने के लिए यहाँ पे लगाई थी कि टेक्नोलॉजी स्टैक में आप प्रोग्राम्स इंस्टॉल कैसे करते हैं आर्डिनो बोर्ड पे। तो आप ये देख रहे हैं लैपटॉप पे आप एक सिंपल केबल के थ्रू आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे आप जनरली किसी भी एप्लीकेशन पे आप लोकल एनवायरनमेंट बना के काम करते हैं, आप ऐसे पूरी एप्लीकेशन को कोड करेंगे। वहाँ पे सिमुलेटेड इनपुट आ रहे होंगे, आप प्रोसेस कर रहे होंगे, आप रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देख रहे होंगे, और उसके बाद आप वो एप्लीकेशन को इस तरह वायर से कनेक्ट करके अपने आर्डिनो बोर्ड में डिप्लॉय कर देंगे। देन यू कैन टेक दैट आर्डिनो बोर्ड एनीवेयर, और ये आर्डिनो बोर्ड विल बिहेव अकॉर्डिंगली। टेक्नोलॉजी स्टैक में एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो एमक्यूटीटी ब्रोकर एक अगर आप इफ़ यू आर गोइंग विद एज्योर आईओटी हब और एडब्ल्यूएस आईओटी हब, तो ठीक है। अगर आपने बहुत डिटेल में एमक्यूटीटी ब्रोकर नहीं भी पढ़ा हुआ तो दैट्स ओके। अदरवाइज इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन कस्टम आईओटी हब, देन you should study about MQTT broker, which basically works on a pops up mechanism which is very standard, कि आप जो भी डाटा देगी, ये ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये डाटा पब्लिश कर रहा है टू MQTT, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये डाटा पब्लिश कर रहा है टू MQTT, एंड देन यू कैन बिल्ड any number of mobile, desktop and web applications. वो subscribe कर सकते हैं to MQTT for different type of data. Some applications may only be interested in humidity sensors output. Some applications may be interested in both. So it depends on the application. You can subscribe to different sensors running in the ecosystem, and then you can provide different or apply different logics on top of it, and can deliver different features to your consumers. So this is how MQTT protocol works. It based on a publish subscribe pattern. How IoT is shaping the future. We have already discussed a lot of use cases. Just quick some like applications and example: building home automation. You can build smart homes, environment monitoring, smart transportation services, जहाँ पे आपने like ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है वो कोई एक कंडक्टर खड़ा हो और वो पैसे ले रहा हो और दे रहा हो. Even in creative chaos, one of our product is MossPay, right? Our team is working on that, जहाँ पे with the help of like we are working on mass transportation systems, और जो कि like IoT devices के through वहाँ पे payments जो हैं वो perform हो रही हैं. तो this is something like we are IoT is something like we are working with on 3 4 like different projects, different type of projects. So we are working with different type of sensors, different type of devices to automate like end-to-end workflows. Energy resource management. So there are different applications where you can apply different areas, I would say, where you can apply IoT and get best out of it. You can anticipate problems beforehand. जैसे सेंसर्स लगे हुए हैं किसी मशीनरी पे, तो आप उसकी लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ कैलकुलेट कर सकते हो. इफ देयर इज एनी ड्रॉप इन एफिशिएंसी, यू कैन रिप्लेस इक्विपमेंट्स ऑन टाइम, व्हिच विल हेल्प यू अवॉइड एनी बैड डे, अ बैड डे फॉर योर ऑपरेशंस टीम, कि आपके ऑपरेशंस रुक जाएं, बिकॉज दैट could cost you a lot. If you, for just for an example, I took this from internet. When a production line goes down, the cost is like exorbitant. In auto manufacturing, downtime can cost you around $22,000 per minute. So like based on your company, अगर आप कोई बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, अगर आप कोई आपके like ऑयल एक्सट्रैक्शन के बड़े यूनिट्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं चल रही हैं, और अगर वहाँ पर आपका डाउन टाइम आता है तो इट विल कॉस्ट यू पर मिनट. तो with the help of IoT devices, you can anticipate problems beforehand and you can solve them beforehand as well. Effective utilization of resources is another application of IoT, जहाँ पर इन्होंने लाइफ शेयर के नाम से कैटरपिलर कंपनी ने जो है टेली प्रेजेंस के नाम से एक टूल बनाया था, विच इज एन ब्लेंड ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड IoT, through which they are making their resources available to different remote locations with the help of different sensors, utilizing voice, 3D animation, annotations, screen sharing, whiteboarding, and with the help of other different sensors. They make it happen that remotely their engineers can help engineering teams sitting remotely in different countries. So with the help of like IoT blend with different set of technologies, maybe like augmented reality, you can build a lot of applications that will help you utilize and help you use your resources in an effective manner. So that's it from my side. Conclusion may like we have already discussed everything. We can discuss about or I can take your questions related to how one can build career in this space, how we can adopt and benefit from it in our day-to-day life.
how IoT is changing the future. We have already discussed this. How industries are optimizing their processes, like using IoT. How artificial intelligence, big data, machine learning linked with this concept. And we have already discussed for simple cases, IoT is enough, but for advanced use cases, you need to blend all of these technologies together in order to provide like unique and intuitive user experiences. So that's it for today. Any questions? Please let me know so that I can answer. Asim Shah. Yes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच अदील, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हमें Welcome. आईओटी के हवाले से। इस फील्ड में तकरीबन मैं 10 साल पहले शामिल हुआ था और शुरू किया प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए, रिमोट प्रोग्रामिंग। आप पीएलसी और स्काडा के अंदर आईओटी ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब जो आपने चीज़ें बताई हैं ये स्पेसिफिक टू द, क्योंकि आपके सामने ऑडियंस ही वेब वाली सारी बैठी हुई, तो Mhm. आपने ज़्यादा वेब के ऊपर चीज़ें लेके गए। तो इंडस्ट्रियल जो एवोल्यूशन साथ साथ हो रहा था, इंडस्ट्री 1.0 से लेके 4.0, आगे उससे प्लस जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें पीएलसी और स्काडा को किस तरह से आप देख रहे हैं? Uh, दो चीजें हैं. Obviously, like based on my target audience, I am more focused on how like we can use IoT in blend of like web applications, mobile applications, but I also talked about some of the like industrial use cases as well. I talked about how oil extraction companies using IoT in order to monitor health of their equipments. This is like basically this is one of the use case you talked about, but I'm not sure about the other protocol you just talked about. Your voice was a bit Okay. not clear to me, but yes, So there are a lot of applications in the industrial side as well. A lot of companies optimizing their processes. Even जो IT companies नहीं है, like the manufacturing में तो उसका और बहुत ज़्यादा काम है. जब हम बात कर रहे हैं कोई like walls की company है, उनके पास cold storages हैं, right? So how they can use IoT in order to make sure कि उनके पास जितनी भी उनके assets हैं, उनकी products हैं, वो बिल्कुल सही टेम्परेचर पे मेंटेन हो रही हैं. या कोई अगर मीट डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है तो उनके पास फ्रोजन आइटम्स बिल्कुल सही लेवल के ऊपर जो है वो मेंटेन हो रहे हैं. या कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है तो वो किस तरह से आईओटी को यूज करें कि वो हेल्थ मॉनिटर कर सकें अपने इक्विपमेंट्स की, और वो ऑपरेशंस को अपने एफिशिएंट रखें और कोई डाउन टाइम इनके पास ना हो. तो देयर आर लॉट ऑफ लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज वेल. okay, so it was actually SCADA. SCADA. Yes, SCADA is used for monitoring and plant processes and continuous monitoring and control, command and control structure of Industry 4.0. So if there are multiple industrial lines generating various products, so you can control downtime, uptime, production time, and all of these things, and by embedding different things from the machine learning exactly in the specifically in the deep learning, you can go for that. This machine is making this much loss, so we need to replace it, and you बिल्कुल can बिल्कुल, yeah. I so take your point. Asim, thanks for increasing my knowledge as far as the SCADA is concerned. I haven't worked with that particular tool, but it sounds like it's a complete package, like it's a end-to-end complete solution. package. Yeah, so a lot of industries like using such solutions as well, because it will be easier for them to adopt and configure. Because otherwise, if they implement from custom approach, like obviously this will take time to mature that system to a point that they can get the best out of it. So generally company use these package solution that provides like end-to-end solution. अच्छा, सेकंड चीज़ इसमें मैं इसी का एक सब क्वेश्चन था, जो इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें ओपीसी यूए या 1970 से जो यूएस प्रैक्टिस कर रहा था ओपीसी डीए, वो उसके ऊपर आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसका एवोल्यूशन वहीं पे रुका हुआ है, और ओपीसी यूए में उसने एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल दे दिया जिसमें अभी आईओटी का 70% से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो कंट्रोल हो रही हैं पूरी दुनिया में अभी जो एग्जिस्ट कर रही हैं. तो करंट मार्जिन को लोग उसकी तरफ दौड़ लगाएं, या जो
अभी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह MQTT है, आपने ज़िक्र किया, उसमें QoS 3 लेवल तक भी दे रहा है, जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़ है। तो अब वो इस साइड पे दौड़ लगाएँ या आप क्या कहते हैं, उन्हें OPC को भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है इसका? देखिए ऑब्वियसली दोनों साइड्स को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में पहले से होती है, उसका एक शेयर बहुत ज़्यादा होता है, वो मैच्योर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, तो हुँ, की तो एप्लीकेशंस रहती हैं हमेशा। और आप बाज़ दफ़ा स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट्स को जब बिल्ड कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आप मैं कंसीडर करते हो टेक्नोलॉजीज लाइक दीज। तो it's a blend of both the things. I think for newer projects, for relatively smaller implementations, someone can go with something simple, MQTT. And if there is like any enterprise use case, something big, if they are using any package solution which is compatible with that protocol, obviously, then companies generally go with that protocol. And obviously, evolution, as far as the evolution is concerned, that's the only constant thing, right? So even every company, any protocol, कुछ भी हो, वो continuously evolve तो होता रहता है. There may be some times जो वो एक टाइम के लिए स्टक हो जाता है, क्योंकि जो करंट मार्केट नीड्स हैं उसके लिए वो काफ़ी होता है। तो उसमें ऑब्वियसली आप जितना इवॉल्व करते हो, यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो आप उसके लिए कंपनीज जनरली राइट टाइम का वेट करती हैं कि कब हम उसमें इन्वेस्ट करें, कि जब मार्केट में उसकी नीड हो। अदरवाइज इफ दे वर्क ऑन समथिंग विच इज नॉट रीयूजेबल और नॉट यूजेबल इन द मार्केट, या अडॉप्शन रेट कम होगा, तो कंपनीज नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट अ लॉट इन सच थिंग्स। एक लास्ट क्वेश्चन दूँगा, ऑडियंस को काफ़ी बोर कर दिया मैंने। नहीं तो नहीं, आपके बड़े टेक्निकल क्वेश्चन हैं, इनसे साथ साथ मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो दैट्स गुड। 2007 में एनएस सनपाई को जो आपकी टेक्निकल कोड थी, डेटा स्टीलिंग और अटैक के चक्कर में उसको उठा के ले गए थे, तो वो उसकी स्किल लेवल से बढ़ के चीज़ थी, मिराई बॉटनेट अटैक। मिराई को अगर जापानीज वर्ड की ट्रांसलेशन की जाए दी फ्यूचर, तो उसने जो अटैक वेक्टर तैयार किया था वो तकरीबन 7 मल्टीपल अटैक था, जिसमें एक्नॉलेजमेंट अटैक, आपका बफर अटैक, इस तरह की मल्टीपल चीजें उसने पूरा वेक्टर तैयार करके अटैक किया। और वो अटैक स्पेसिफिकली था भी IoT डिवाइसेस पे। किस तरह से, उसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जितने राउटर बनाने वाली कंपनीज हैं, वो कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड लेके चलती हैं, एडमिन एडमिन और इस तरह की चीज़ें। तो वो ज़्यादातर लोग जिस जगह पे इंस्टॉल हो जाती हैं, फायरवॉल वगैरह भी जिस जगह पे इंस्टॉल हो जाती हैं, वो उसको कस्टमाइज़ करने की वो क्या कहते हैं, मेहनत नहीं करते। तो अब वो जो अटैक था, वो एक वेक्टर उठा के उसको सबको लेके जा रहा था। आपका जितना भी कनेक्टेड मशीन टू मशीन्स थी, बजाय इसके कि वो टॉक करें आपस में और सिक्योर वे में चलें, तो उन सब ने उसको एक डिडॉस के लिए रिसोर्सेज का एनवायरनमेंट दे दिया। तो अभी जो हम IoT को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कनेक्टिविटी जहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल कोट किया। बिल्कुल। एंड अगेन दिस इज समथिंग वी कैन डिस्कस लाइक वन ऑन वन लेटर, मे बी बहुत सारे लोग में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा लूज कर दें, बट एज फार एज दी सिक्योरिटी इज कंसर्न, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली एड्रेस कर दूं। कि जैसे आई टॉक्ट अबाउट MQTT प्रोटोकॉल, राइट? MQTT प्रोटोकॉल डजंट प्रोवाइड encryption at the transport level out of the box. If you go with HTTP protocol, it has its own limitation when it comes to, because it's relatively bulky protocol as compared to MQTT. But HTTP is provide encryption out of the box at the transportation layer, which is important from the security perspective. So it vary from one project to another project, but yes, there are different options available, and based on the project needs, like we can pick the right tool set and we can apply encryption and see like how we can make it secure. थैंक यू सो मच मिस्टर अदील। Welcome. किसी और का लाइक कोई क्वेश्चन हो? Okay, I don't think we have any more questions. So we will be ending this session. Thank you everyone for joining, and thank you Adeel for Welcome. the really insightful and informative session. I will be emailing the YouTube link to everyone who registered, and